Hello everyone, a very good evening to all of you present with us today. I am Rishabh Agnihotri, and on the behalf of Knowledge Catalyst community, I take this pleasure to welcome you all to this amazing event on the secret to opportunities. Knowledge Catalyst, a student community driven by the motto by the students and for the students. As of today, Knowledge Catalyst is a community of 2000 plus members from 32 plus colleges across the country. We at Knowledge Catalyst focus on developing hands on skills and providing the members with practical knowledge rather than just theoretical knowledge. We work in many domains such as coding, DSA, non tech development, modern tech, designing, and cybersecurity. There are also a number of clubs offered at KC, like reading, movies and music, health and fitness, entrepreneurship, and gaming clubs. We not only help the members in developing their skills, but also help them in interacting with the people and giving them a space with like minded people, and in turn, grow as a whole community. Now I'll hand over the stage to Pratyaksh as he'll be describing the event. Thank you, Rishabh. So, good evening, everyone. Today we have with us Sanket Singh, popularly known as Sanket Bhaiya. He is currently placed as a software engineer at Google. He has been an engineer at LinkedIn, ex-software engineer at InterviewBit, and former GSOC developer for Harvard University. He has also been a research intern with ISRO and an educator at Unacademy. He also has a YouTube channel where he talks about tech, productivity, programming, software development, and gaming. We are privileged to have you with us, Bhaiya. Today, in the event, we will discuss topics like open source, GSOC, DSA, internship, off-campus opportunities, and interview experiences. We will also hold a Q&A session in the end. Also, guys, we will be providing you with the feedback on the midst of the session. Those who fill it will receive a certificate on their mails. Now I hand over to Rishabh to start with our event. So thank you, Pratyaksh. Now, guys, without any further ado, I would like to call upon Sanket Bhaiya to tell us about open source opportunities with DSA. Okay, so hey everyone, if you are able to hear me, like Rishabh and Pratyush, can you please tell me if I'm Yes, audible? yes, Bhaiya, you are audible. Okay, ठीक है. तो Pratyush and Rishabh have already kind of like introduced me. Just a second. Okay, yep. Cool. So we have currently, I guess, disabled the chat, but as Rishabh said, we'll be taking all of your questions. So let me tell you about the whole session, how we will be going forward for the session. We have some certain amount of things that we are going to discuss, right? I hope that I'll try to explain most of the things in as in depth as possible. Then we will be taking up some questions that you guys only sent us, and we thought that these questions cover most of the doubts of all the people. And after that, we will be taking up some questions from your side also. So just don't worry on that part. If anything that you want to discuss is not yet covered, we will be taking up questions from your side also. Okay, so Rishabh and Pratyush has already like introduced me. So I'm working as a software engineer at Google. But मतलब इंट्रोडक्शन में सारा पार्ट अच्छा था, बट ऐसे संकेत भैया वाला भी मतलब ऐसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. आई प्रेफर बीइंग कॉल्ड संकेत ओनली. ठीक है. तो चिल है. So talking about my expertise and my experience, so I've been working as a software engineer, as a full-time software engineer for kind of like more than 1.5 to 2 years. I worked with a lot of startups also as an intern, very small scale startups here in New Delhi. I'm based off New Delhi. I worked with very, very small startups. I worked in the open source domain with Harvard University engineers. I worked with India's top 10 startups named as InterviewBit, as well as an academy. I worked with LinkedIn. I worked with Google, right? Talking about from what college I belong, I graduated in computer science engineering from Maharaja Agrawal Institute of Technology in New Delhi. I'm a computer science grad. Why I am telling about the college priorly, because some of you will be asking from which college I am. So I won't say it's a very bad college. I won't say it's a very decent college, but yeah, it's kind of good. It has a good name in New Delhi because of its low attendance criteria. So I was one of those lucky people who got a college with very, very, very low attendance criteria. Okay, so now the first question that Rishabh asked about the DSA part and the open source part. So first of all, let's just take up things around open source, right? What I believe things are and the culture are there in open source, and how you can get up opportunities in open source, how you can get up opportunities in open source, right?
Okay, so open source, a lot of people feel that open source is, again, there are some competitions that are going on in open source, and there are some opportunity that you have to crack and do stuff there in open source. But open source is not like JEE. It's definitely not JEE. It's not a race that you have to run. It's something that if it excites you, then it can give you a very large scale opportunity that probably not, you won't get it before 4 years of your college, right? This kind of opportunity that open source can give you, you won't get it before, I would say 4 years, like, or maybe 3 years if you are from BSc or BCA. From here, like, before ending the college, you won't get that scaled opportunity. I guess that point makes sense. Just give me one more minute. Uh, just a second. Yeah. Okay, sorry. Cool. So yeah, so like, why I started with open source. So in class 12th and class 11th, I was having Python as a programming language that I not kind of love, but not kind of hate also. But that was the first moment when I realized that there is something called as open source. Okay, so what is open source softwares? Open source softwares are free softwares for which, like, you can use those software however you want. You can contribute to those softwares, like you can contribute to the functionality of those softwares, and maybe, just maybe, your small contribution can be added to a very, very large code base. Some very, very famous open source software that you guys might be already using and you might not even know about, that is VLC. सब लोगों ने movies देखने के लिए VLC use करा होगा. VLC is one of the top open source projects. Android as an operating system is an open source initiative by Google. And there are a lot of open source softwares that companies have launched, and individual societies have launched, and people contribute to that, right? So why would you like to do open source software development? So I have seen, I am from a college where placements was not something that was readily available to everyone. Okay, like, you won't get a lot of on-campus opportunities. So that's why people have to explore a lot of domain. And while exploring a lot of domain, software development also comes as one of the things, right? So there were a lot of people who were very enthusiastic about the fact that we want to build something, we want to make something that is impacting a lot of lives, right? When you write a linked list or when you code a segment tree, you're not impacting someone's life. You are training your brain, or you are training yourself in the algorithmic paradigm, but you are not impacting someone, right? But think about the fact that if you have contributed to a software like VLC, then you have impacted millions of people who are watching movies. Your maybe very small feature, maybe a shortcut you are going to add in VLC, that shortcut will be used by a lot of people, and that is going to impact the life of a lot of people because you'll be saving time for them, right? So a lot of people are enthusiastic about the fact that we want to create the impact from the day one, right? We want to learn by doing, right? We don't want to learn a technology just for the sake of learning it. We don't want to build something out of it. For those kind of people, open source is a domain. Open source is a space where everyone is welcomed, right? From whatever college you are, they don't care because they don't know your top colleges also. From whatever branch you are, they don't know because they don't care about your branch. The only thing they care about is you want to code, and you will eventually learn how to code, right? Now, people confuse that open source is all about Google Summer of Code. I won't say that I was not having that notion, but I later realized it's much more than that. So I have a lot of friends who contributed for like 2 to 3 years in open source, but still were not able to get selected in Google Summer of Code. And they're still doing it. And they're still contributing to open source. They are out of college and they are still doing it. So I would recommend, like, from anyone, if you ask that how to participate, the question should be how to participate in open source software, how to participate in Google Summer of Code, how to participate in opportunities like Outreachy, how to participate in Rails Girl Summer of Code. I guess Rails Girl Summer of Code is now like stopped. I don't think they have continued it, but like any opportunity that you see, try to ask how to participate in that. It's participation, it's not
it's not a competition, right? You don't need to compete, you don't need to prepare, right? ये कोई maths के integration की इतनी मोटी किताब नहीं जो आपको पूरी पढ़ के आनी तभी आप J clear कर पाओगे. It's not like that. A lot of people get even offended when you ask them that how to crack Google Summer of Code. That's a wrong question to ask. Now, how you can participate in open source, how you can get indulged into the world of open source. So see, the overall community of open source is kind of welcoming. It is welcoming a lot of people from a lot of background. It's having a lot of diversity inside it. So what should be your initial step to take up things in open source if you want to contribute to, if you know that you have that fire, if you know that you want to contribute to a software as early as possible, you don't want to wait for your first job or a first internship in order to contribute to a job, then open source is the place for you. Then how you can contribute to it is you need to first see what excites you, what domain excites you. I was very much into edutech as a domain, right? That's why contributing to a software of Harvard University was way more connecting to me rather than contributing to maybe Python Software Foundation or Ruby Software Foundation. Because the project that I did with Harvard University was going to be used in the classes of Harvard University. And being an educator myself, like at that point of time, a budding educator myself, I was able to connect to the domain, what Harvard was expecting out of the software, right? So you need to first see what domain excites you. And the second thing, you need to see what you already know, right? What you already know is going to be also something that you should take care of, right? But if let's say you have decided the domain, let's say healthcare is something that excites you, or maybe core libraries, core language libraries, or maybe writing a new software language is something that excites you, you can pick up those organizations. Now, how you will get to know if there is any organization in that domain? So now here is something that Google Summer of Code archive pages can help you. So you can go to Google Summer of Code archives, which is like a collection of list of organizations who participated in Google Summer of Code the moment it started, right? So you will be able to get a list of it's a tedious task. It's a tedious task, but as I said, you need to have that fire, right? You need to have that fire that okay, I want to contribute to something, so I need to find it. It's like कि तुम कॉलेज में आए हो और तुम्हें मतलब ऐसे पार्टनर चाहिए, स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, अब कॉलेज में तुम्हें है कि भाई सिंगल नहीं रहना है, सो यू हसल फॉर दैट, ठीक है? तुम क्लास में पहले देखोगे, अच्छा क्लास में देखते हैं कि किससे मेरी आसानी से बात हो सकती है, ठीक है? अच्छा, इससे मेरी आसानी से बात हो सकती है। अब पहले देखना होगा कि वो भी बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अच्छा, वो भी बात कर, तो पहले तुम बातचीत करोगे, दोस्ती बढ़ाओगे, नोट शेयर करोगे, उसके लिए प्रोजेक्ट करोगे, उसके लिए असाइनमेंट करोगे। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है हाँ चलो डेट पे चलोगे क्या, उसके बाद तुम लाइफ में किसी के साथ डेट पे नहीं जा पाओगे, है ना? तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू योर करियर ऑल्सो। इन ओपन सोर्स यू ट्राई टू अप्रोच पीपल, ठीक है? तुमने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी, कैसे ढूंढी? मैंने बताया कि गूगल समर ऑफ कोड, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आर्काइव पेजेस दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। मतलब बहुत आसान है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है कुछ पता नहीं लग रहा है। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया, आप दिख रही स्क्रीन दिख रही है। यस, so we can go to Google Summer of Code archive, ठीक है? You just need to type Google Summer of Code archive, ठीक है? And the first link is Google Summer of Code archive. तो इसमें जो भी year लास्ट ईयर लाइक 2020, 2019, 2018, 2017 और जो भी पिछले जितने भी सालों के Google Summer of Code के सेशंस हुए हैं, इन सब की डिटेल्स अवेलेबल है। 15 से लेकर 2009 तक अवेलेबल। तुम 2009 तक भी जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा, अच्छा ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। सो हियर यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हम लोग 2020 में चलते हैं, ठीक है? 2020 के लिए ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं। अब तुम इसको काफ़ी तरीके से फिल्टर कर सकते हो कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें लेट्स से इस डोमेन में काम करना है, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, वर्चुअल रियलिटी, यू कैन जस्ट टेक अ फिल्टर आउट ऑफ इट और तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जिनके पास प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू दैट। एंड यू कैन सी वीडियो लाइन इज ऑल्सो देयर जिनकी तरफ से वीएलसी और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे तुम आके organization select कर सकते हो। Now again, this is not for selecting an organization for Google Summer of Code. It will be helpful for selecting an organization for any open source contribution that you want to make. ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ठीक लग रही बात? अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे गए, अब यहाँ पे आपको
इनके IRC चैनल और मेलिंग लिस्ट और कॉन्टैक्ट ईमेल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप इनको अप्रोच करोगे। जो मैंने बताया ना कि सबसे पहले आप एक अप्रोच करोगे कि अच्छा आई एम इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशंस एक्स एंड वाई प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मिल जाएगा, इन सारे बच्चों ने इन प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप इनको बताओगे कि अच्छा मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट पे गेट स्टार्टेड होना चाहता हूँ, मेलिंग लिस्ट में ऐड हो जाओ, IRC चैनल पे पूछो या कॉन्टैक्ट ईमेल पूछो। सो दे विल बी रेडिली अवेलेबल टू हेल्प यू। वो लोग क्या करेंगे, तुम्हें रेडिली अवेलेबल रहेंगे हेल्प करने के लिए। दे वोंट से कि अच्छा आप पहले कुछ कंट्रीब्यूशन करिए उसके बाद बात करिए, ऐसा नहीं है। व्हेन आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू हार्वर्ड, सो आई वाज सेटिंग अप दिस प्रोजेक्ट ऑन Meteor.js। Meteor.js दुनिया में बस 2 ही लोगों को आती है, एक जिसने Meteor.js बनाई है और एक जो हमारा प्रोजेक्ट हमारे लोग कर रहे थे। ज्यादा लोग Meteor.js यूज नहीं करते। सो आई रीच्ड आउट टू देम एंड देन दे हेल्प मी आउट कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में हमें ये रिक्वायरमेंट है, अगर सेटअप में आप यहाँ फंस रहे हो तो ये कुछ थ्रेड्स हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीजें नहीं है, क्या है, एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड। लाइक आई ड्रॉप्ड एन ईमेल एंड आई गॉट अ रिप्लाई विद इन 24 hours, and considering the fact that they are in US, they are replying almost instantly because there is a time difference। मतलब मैंने जब यहाँ से मैसेज किया तो वहाँ पे रात हो रही थी और जब उनका डे टाइम हुआ तो उन्होंने immediately reply किया। So the organizations are quite helpful and they are readily available to help you। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और वहां से कुछ प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट शुरू में समझ में ना आए। 90% ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेट अप द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट सेटअप करना, आई नो इट्स अ पेन। मैं स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ, मैं कंपनीज में काम कर चुका हूँ। कंपनी और स्टार्टअप के प्रोजेक्ट को भी सेटअप करना अपने लैपटॉप में 1 से 2 दिन लेके जाता है कभी कभी, ठीक है। व्हेन आई वाज इन इंटरव्यू बिट, मैंने 3 दिन खर्च किए थे अपना इंटरव्यू बिट का सॉफ्टवेयर, इंटरव्यू बिट का बैकएंड सेटअप करने में, क्योंकि जब उन्होंने सेटअप किया तब कोई लाइब्रेरीज थी, वो लाइब्रेरी नहीं है तो अब उसका हैक लगाना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू सेलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, देन टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट जो कि तुम्हें इस पेज से मिल जाएगा, और फिर उस प्रोजेक्ट को सेटअप करो। प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बाद यू कैन गो टू देयर गिटहब पेज और गिटलैब पेज, और वहां पे एक सेक्शन होता है इश्यूज। अब इशू क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई चीज आपको बिल्डअप करनी है तो उसके छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, आपको टेबल बनानी है तो पहले आप वुडन प्लैंक खरीद के लाओगे, उसको कट करोगे, उसको पेंट करोगे, देन उसको नट एंड बोल्ट से स्टिच करोगे। सो देयर आर स्टेप्स। तो ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे टास्क होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सो दे लिस्ट देयर टास्क एंड स्टेप्स इन दैट इश्यूज सेक्शन। तो आप इश्यूज पे जा सकते हो और वहां पे बहुत सारे टैग होते हैं कि यार ये बिगिनर के लिए इशू है, आप लोग बिगिनर हो तो आपके बिगिनर के लिए इशू है, या ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए इशू है, या एडवांस के लिए इशू है। फिर इशू का डिस्क्रिप्शन होता है कि अच्छा ये इशू फ्रंट एंड वाला है, बैक एंड वाला है, इस इशू में कितना टाइम एक्सपेक्टेड है, सो ऑन। बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है। यू जस्ट नीड टू ओपन द गिटहब पेज ऑफ द प्रोजेक्ट, जस्ट ओपन द पेज ऑफ द गिटहब प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर द इशूज। और शुरू में इट्स कंप्लीटली ओके टू टेक अप अ इशू, लाइक कि आप किसी हेडर का नाम चेंज कर रहे हो या फिर किसी फुटर में कोई लिंक चेंज कर रहे हो। इट्स गुड, क्योंकि आपको प्रोसेस पता लगेगा कि अच्छा अगर मैंने कोई चेंज करा इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में तो उसको सबमिट कैसे करना है, कितने रिव्यूज लगते हैं, अच्छा कोड कैसे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पुल रिक्वेस्ट मतलब अपनी रिक्वेस्ट रेज करोगे मैंने ये चेंज करा है, प्लीज इसको सबमिट करिए, तो उस पुल रिक्वेस्ट में क्या डिटेल्स डालनी है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। द ओनली थ्रेशोल्ड दैट वो होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक थ्रेशोल्ड लिमिट से जस्ट ऊपर आना होता है, उसके बाद वो उड़ जाता है। सो यू हैव टू जस्ट पुट योरसेल्फ टिल दैट थ्रेशोल्ड लिमिट कि आप एक बारी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट सेटअप कर पाए। एक बारी आपने ये कर लिया, थिंग्स विल बी परफेक्टली फाइन। एंड इफ यू आर नाउ गेटिंग इंटरेस्टेड इन ओपन सोर्स, देन ओपन सोर्स community also rewards you. How? Because they have a lot of opportunities like Google Summer of Code, Outreach, ऐसी बहुत सारी opportunity. Outreach is only for girls, but in Google Summer of Code anyone can participate. What is Google Summer of Code? Google Summer of Code is an annual program organized by Google. It's a program, it's not a competition. It's a program organized by Google where only college students, if you are enrolled in a college degree, then only you can participate. College students all over the globe participate, and they can if they get selected, around 1100 or 1200 students all over the globe are selected per year. If they are selected, then they will go through a 3-month process where they will be contributing to the project of their interest. अब इसका process कैसे होता है? You have to submit a proposal, ठीक है। तो अगेन दोबारा तुम्हारे रिलेशनशिप वाले एंड पे आते हैं। अब तुम्हें पता लग गया कि लड़की इंटरेस्टेड है थोड़ी बहुत,
तुम भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, अलाइनमेंट हो रहा है, दोनों के टास्क मिलते जुलते हैं, सो यू विल सेट अप अ प्रपोजल। तुम दोस्त को बोलोगे भाई अब प्रपोज करना है, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे सजाते हैं सब कुछ, ये बोलेंगे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, और फिर देखते हैं प्रपोजल मारेंगे। सिमिलर चीज आपको यहाँ करनी है। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं, people in the organization know because they are accepting your pull request, they are accepting your features. So now there is a bonding between both of you. Now you will say that, how about I can contribute to the same project if that project comes into Google Summer of Code. I can contribute in that project as a Google Summer of Code student developer. It will be a good opportunity for me, and it will be an equivalent opportunity for you because I will be continuously contributing to your organization. Currently, I'm like sometimes contributing, sometimes not contributing. It will be a 3-month foundation where we have to set up some deadlines and we have to set up some features. So that's how it is done. So if you want to see some proposal, I guess the team will send you my proposal that got selected. You every year you can make 3 proposals. I only made one and I submitted only one and I got selected into one. So I'll share my proposal on the screen. I guess in the feedback form and all, you will get the link to my proposal PDF, but I will be sharing you just 1 second. I'll just go through it once. Okay, I guess my screen is available, Rishabh. Yes, भैया. तो दिख रहा है सबको, ये PDF दिख रही है? Is this PDF दिख रही है. ओके, सो बहुत ही सिंपल PDF होती है, बस थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। तो क्या करना होगा, आपको पहले अपने बारे में लिखना होगा, आप क्या हैं, क्या करते हैं, ठीक है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास कुछ इंटर्न्स का एक्सपीरियंस था उस टाइम, ये मैंने लिखा था अपने 3rd ईयर के आसपास, ठीक है। तो इंटर्न वगैरह का मेरे पास एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 अपनी इंटर्न लिखी हुई हैं, मेंटर था मैं, कहीं इंस्ट्रक्टर था, कहीं प्रॉब्लम सेटर था, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है। मैं अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन करता हूँ कि मैं कितना अवेलेबल रहूंगा गूगल समर ऑफ कोड के लिए, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है बर्कमैन क्लीन सेंटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक शेयर किए हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के, अपनी लिंक्डइन गिटहब प्रोफाइल के, ठीक है। प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स हैं, अब जैसे जिस प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स होंगे। ये गोल्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि अच्छा हमारे ना ये गोल्स हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सारे फीचर्स इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ गोल्स प्रपोज करे कि यार मुझे लगता है कि हमें ना ये भी डालना चाहिए, ये भी क्रेजी क्रेजी रहेगा। अच्छा, फिर अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन साइड का आइडिया दूंगा कि हाँ मुझे पता है कि ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं। तो देखो ये सारी फीचर्स हैं जो मैंने मेंशन करे हैं। कुछ के अगर मुझे पता है कि कोई लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है तो उस लाइब्रेरी के कोड स्निपेट मैंने देखो डाले हुए। ऑब्वियसली ये सेम टू सेम कोड स्निपेट नहीं चलेगा, बट मुझे पता है कि ये लाइब्रेरी सिमिलर काम करती है, हमारा जावास्क्रिप्ट का अपना प्रोजेक्ट है, हम कुछ सिमिलर काम कर सकते हैं। दिस इज टू गिव देम अ नोशन कि भाई मेरे को काम आता है, दिस इज टू गिव देम अ नोशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये लाइब्रेरीज notice.js का कुछ कोड डाला हुआ है, ठीक है। ट्राई किया है कि अगर मैं किसी तरह से यूआई का कुछ एलिमेंट लेकर आ पाऊँ कि ऐसा मैं यूआई बनाने की कोशिश करूँ। देखो काफी सारे कोड स्निपेट है, ऑब्वियसली सेम यूज नहीं होंगे, बट दे विल गेट अ नोशन कि यू नो अबाउट इट। और सारी फंक्शनैलिटीज के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इन डेप्थ बताया कि मैं ये फंक्शनैलिटी कैसे बनाऊंगा, मैं ये फंक्शनैलिटी कैसे बनाऊंगा, मैं ये फंक्शनैलिटी कैसे बनाऊंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन यू हैव टू गिव अ टाइमलाइन एंड अ प्रोजेक्ट प्लान कि यार मैं इस दिन से इस दिन तक इस पे काम करूंगा, इस दिन से इस दिन तक इस पे काम करूंगा। ये रेड, येलो और ऑरेंज क्या है, यह है इंपॉर्टेंस एंड टाइम डिवोटेड, कि मुझे क्या लगता है कि यार इस टाइम पीरियड में मेरा बहुत ज्यादा टाइम आपके प्रोजेक्ट पे जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फीचर, जबकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा चिल रहेगा। तो आई हैव टोल्ड देम कि यार मैंने अपनी टाइमलाइन सेट करी है कि मैं 29 मई से 1 जून तक थोड़ा सब कुछ चिल रखूंगा, ये 4-5 दिन है चिल रखूंगा, क्योंकि ये काफी चिल सा पार्ट है, आगे थोड़ा थोड़ा टफ आएगा। तो आई हैव लाइक एक्सप्लेन, और देखो मैंने लास्ट में जाके मोस्टली चीजें रेड रखी है, मुझे पता है लास्ट में डेडलाइंस मीट करना इंपॉर्टेंट होगा। प्रपोजल ऐसे बना सकते हो और लोगों से रिव्यू करा सकते हो। पीपल आर लाइक रेडली अवेलेबल टू रिव्यू प्रपोजल्स, सब लोग बहुत हेल्पिंग होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मर जी सॉकर्स वगैरह होते हैं वो रिव्यू वगैरह कर देते हैं। मेरे को भी काफी रिक्वेस्ट आती है, जितनों के मैं कर पाता हूँ रिव्यू उतनों के मैं रिव्यू कर देता हूँ। So you can get it reviewed and then you can submit. Now after submitting it, every organization have different criteria for selection. मेरी organization में proper एक interview type setup हुआ था। हार्वर्ड के 3 इंजीनियर्स के साथ मेरा एक 2 घंटे टाइप कॉल चली थी। उन्होंने मेरे से बहुत कुछ पूछा, उन्होंने पूछा हार्वर्ड ही क्यों आपने चूज करा, तो ऑब्वियसली मैं अलाइंड था हार्वर्ड की तरफ क्योंकि एडुटेक वाले पार्ट पे था मैं। सो दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, मे बी दे कैन सी योर ओल्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस। जस्ट फॉर द नोट, मैंने कभी इससे पहले सेम प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा था। मैंने गिटहब पे और अपना काम करा हुआ था,
दूसरी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे स्टार्टअप्स में कंट्रीब्यूट किया था, उनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट किया था, हार्वर्ड के किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो अगर आपको अगर कोई ये कहता है कि गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेशन के लिए यू हैव टू मेक सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लाइक लास्ट 1 ईयर, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ रेस कि आप 1 साल उसको ऐसे पार्टिसिपेट करोगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपने ओपन सोर्स में कुछ पार्टिसिपेट करो, एंड आई गेस दैट विल बी एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। आफ्टर दैट आई गेस उसके 10-20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, यू कैन स्टार्ट। गूगल समर ऑफ कोड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। मेरे टाइम पे था $3000 थे, एक 3rd ईयर के बच्चे के लिए काफी होते हैं। वो अपनी कॉलेज की फीस उसमें निकाल सकता है, अपने एक्सपेंसेस ड्राइव कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। सो दिस वाज द थिंग दैट वाज माय ओवरऑल जर्नी फॉर ओपन सोर्स। मैं इसमें, मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसरो, आई गेस हमने नाम सुना होगा, वहां पे मेरे साथ इंटर्न करने गए थे अंकुश मलिक। वो मेरी कॉलेज के थे, और 1 साल पहले उन्होंने मेरे कॉलेज से गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट करा कि यार तेरे में भी मुझे लग रहा है पोटेंशियल है, तू ओपन सोर्स थोड़ा बहुत तो कर रहा है, क्यों ना जीसॉक में ओपन सोर्स का ट्राई करें। एंड आई ट्राइड, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड आई एम रियली थैंकफुल। मुझे पता है वो ये सेशन कभी देख नहीं रहा होगा, बट अगेन इट्स ऑलवेज गुड टू एक्नॉलेज पीपल। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ओपन सोर्स का बेस्ट पार्ट है। क्या ओपन सोर्स से आपको जॉब मिल जाएगी? अगर आप जॉब के लिए ओपन सोर्स कर रहे हो तो आप अपना लैपटॉप बंद कर दो, क्योंकि जॉब और ओपन सोर्स दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ओपन सोर्स विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड वन हु इज अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड। ऐसा नहीं कि आप ओपन सोर्स नहीं करोगे तो हायर नहीं होगे, या जो ओपन सोर्स करता है वो पक्का जॉब करता ही करता है। आई हैव एग्जांपल जो जीसॉकर्स हैं, पर वो फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं बिकॉज उन्हें वो अच्छा लगता है। दे डिडंट गो फॉर जॉब और समथिंग। सो डोंट मेक योर जीसॉक or let's say your open source contribution a criteria to get a job. The moment you will stop doing things for job will be the moment you will be getting even closer to your dream job. Trust me on that fact. अगर मैं बात करूं कि डीएसए का क्या पार्ट है, ये तो बात होगी ओपन सोर्स के लिए। नाउ व्हाट अबाउट डीएसए? सो सी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर फंडामेंटल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब तुम लोग कॉलेज में आते हो, एक नई लैंग्वेज सीखते हो, तो काफी लोगों को दिमाग में रहता है यार कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, ये लैंग्वेज पढ़ ली है तो अगली कौन सी लैंग्वेज करें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई क्या लैंग्वेज आती है। दिस इज अ वेरी ब्रूटल कमेंट आई एम मेकिंग ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे 200 से ऊपर बच्चे देख रहे हैं, बट नोबडी केयर्स अबाउट द फैक्ट दैट व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू यूज। क्यों ऐसा क्यों है? आई कैन गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। So I was working at LinkedIn, and the whole backend, I believe you understand about what is backend. The whole backend of LinkedIn is built in the programming language Java. But जो Java आप लोग स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उस Java से वो Java बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे LinkedIn ने अपनी बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐड करी हुई हैं जो Java के सिंटैक्स को बहुत ही जावा स्क्रिप्टिश सिंटैक्स बना देता है, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा LinkedIn को लगता है। तो आपने जो भी जावा पढ़ी, आपने इतना सब पढ़ा, आपने हैश मैप पढ़ा, ये पढ़ा, आपको अंदर जाके पता लग रहा है, आपने थ्रेड पढ़ा बाहर, अंदर जाके पता लग रहा है अरे लिंक्डइन ने तो कुछ क्रेजी ही कर दिया। फिर आप बाहर जावा में कोई फ्रेमवर्क पढ़ के आ रहे हो, अंदर तो वो फ्रेमवर्क यूज ही नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं, सब लोग तुम्हें एडवाइस करेंगे पाइथन पढ़ लो, पाइथन में एकदम ऐसा स्कोप है ना कि मतलब इतना जॉब मिलेगी। तो उसमें कैच होता है जो वो लोग नहीं बताते हैं। Learning language is relevant for small scale startups, very small scale startup, not even medium level startups. जो small scale startup होते हैं, जैसे अभी मान लो कि मैं यहाँ से 4 बंदे उठाता हूँ कि यार अपन लोग कुछ बनाएंगे, ठीक है। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम चारों एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे जो चारों को आती है, तभी चारों एक साथ कंट्रीब्यूट कर पाओगे ना। फिर हम लोग कहेंगे अच्छा यार अब तो इंटर्न चाहिए, इंटर्न को उठा के लाते हैं। अब इंटर्न कैसे उठा के लाएंगे? जिसको कुछ और आता होगा नहीं ना, जो हमारे से अलाइंड होगा, सस्ते में मिल जाएगा और काम कर देगा, बिजनेस माइंडसेट। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वर्क्स देयर। बट अगर तुम लाइक लॉन्गर रेस देखते हो, यू वांट टू एम फॉर थिंग्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन, सो वहां पे चीजें ऐसा नहीं है जो आप पढ़ रहे हो वही यूज हो रहा है। अमेजोन को लाखों लाख एम्प्लॉयज को एक साथ कोड करवाना है, तो वो हर एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं चलेगी, एम्प्लॉय उसके हिसाब से चलेगा। द सेंट्रल नोड इज अमेजोन, नॉट द एम्प्लॉय। तो अब इसलिए दिमाग में हमेशा एक बात रखनी है, कभी भी लैंग्वेजेस के पीछे नहीं भागना है, फ्रेमवर्क्स के पीछे नहीं भागना है। आप अपने कॉलेज की जर्नी के स्टार्ट में एक लैंग्वेज पिकअप करिए और जस्ट गो विद इट। अगर आपने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज पिकअप नहीं करी है, डीएसए पे मैं अभी आ रहा हूँ, पर अगर आपने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज पिकअप नहीं करी है, सो आई वुड से स्टार्ट विद C++। अगर आपने ऑलरेडी जावा से स्टार्ट कर लिया है,
ऑलरेडी पाइथन से स्टार्ट कर लिया है, सो डोंट वरी, जो स्टार्ट किया उससे कंटिन्यू कर लो, क्योंकि इवेंचुअली सी प्लस प्लस कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। पर अगर स्टार्ट नहीं करा है तो मैं सी प्लस प्लस रिकमेंड करूंगा। अब तुम कहोगे सर सी प्लस प्लस के लिए इतना क्यों, जावा क्रेजी है, जावा की डिमांड है। जावा के बेसिस पे तुम 10 में से 2 ऑफर अगर निकाल दोगे तो मैं आगे आने वाले सारे सेशन से बोलना शुरू कर दूंगा कि जावा इज द बेस्ट। फ्रेशर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उसको जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है। मैं सी प्लस प्लस क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथमिक पार्ट। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पार्ट का क्या है। तो आगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, जो कि कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल है, तो आप कहाँ से पढ़ोगे? किसी का लेक्चर देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कोई ब्लॉग पढ़ोगे, कोई मीडियम का आर्टिकल पढ़ोगे। मोस्टली जगह आपको जो कोड मिलेगा, जो सैंपल कोड मिलेगा किसी प्रॉब्लम का, किसी डेटा स्ट्रक्चर का, 90% ऑफ द टाइम तुम्हें सी प्लस प्लस में मिलेगा। 90% ऑफ द टाइम। मेरी बात पे भरोसा नहीं है, कोड फोर्सेस पे जाओ, कोडशेफ पे जाओ, कोई भी 10 प्रॉब्लम शॉर्टलिस्ट कर लो, उसका एडिटोरियल पढ़ लो, तुम्हें सारे सी प्लस प्लस में मिलेंगे। पहली चीज तो तुम्हें अगर अच्छे से कॉम्प्लेक्स कोड अंडरस्टैंड करना है तो तुम्हें अगर सी प्लस प्लस आती होगी तो तुम दूसरों का लिखा हुआ कोड पढ़ पाओगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर कल को करते हो, हर्ष एंड ऑल द पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स, हम सबके क्वेश्चन ले लेंगे अभी एक बारी, मेरी तरफ से एंड कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम आगे जाओगे तो सी प्लस प्लस जावा से या पाइथन वगैरह से सबसे फास्ट होती है, ठीक है। तो थोड़ा एज रहता है। मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बता सकता हूँ। आई वाज डूइंग अ कॉन्टेस्ट जहाँ पे मुझे 3D डीपी का एक क्वेश्चन करना था। मैं बिल्कुल सच सही चीज बता रहा हूँ, एक भी चीज झूठ बोलूं तो दोबारा क्रोम क्रैश कर जाए, इंटरनेट ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो 3D डीपी का प्योर क्वेश्चन बनाना था, तो तब मैं थोड़ा बहुत जावा में कोड कर रहा था। पूरा का पूरा सेम कोड जावा में टीएलई दे रहा था, सेम टू सेम कोड। मतलब जावा में भी मैंने एरे बनाई ग्लोबल, सी प्लस प्लस में भी एरे बनाई ग्लोबल, जावा में भी सेम रेफरेंस से सॉल्व करा, सी प्लस में सेम रेफरेंस सॉल्व करा। सी प्लस प्लस में सबमिट हो गई, जावा में सबमिट नहीं हुई। मैं कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने बहुत देर तक डीबग करा, एक लाइन कमेंट करा, 2 लाइन कमेंट करा, फिर एक लाइन अनकमेंट करा, इसे ट्राई किया कि कौन सी लाइन है जो सच में जहर कर रही है। देन आई रियलाइज्ड कि जो 3D एरे को इनिशियलाइज करने का पार्ट है, उसको 2D एरे में कन्वर्ट करके, नीचे का कोड तो नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा एरर देगा, मतलब मैंने रन कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर रिजॉल्व कर दिए, बट टीएलई नहीं आ रहा था, अब रॉन्ग आंसर आ रहा था, मतलब कोड पूरा प्रोसेस हो रहा था। तो वो 3D एरे बनाने में इतना टाइम लग रहा था, पर C++ 3D एरे बनाने में उतना टाइम नहीं ले रही थी। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, कोडशेफ पे बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा फास्ट होती है C++। सी में रेकमेंड नहीं करूंगा कि C++ में सी से ज्यादा फीचर है, तो आप C++ ही सीधा करो। पर अगर जावा पाइथन से शुरू कर दिया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। प्रेफरेबल है कि या तो C++ कर लो, नहीं मन है C++ तो जावा कर लो। ये मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशन रहेगी, प्रायर रिकमेंडेशन रहेगी C++। अब अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली है, अब आपको क्या करना है? अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? जॉब चाहिए नहीं। जॉब के लिए आप लोग पढ़ोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ना है। आप कहोगे क्यों पढ़ना है? मेरे को आगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। अभी चैट में 225 बच्चे हैं, 225 में से 150 बच्चे बोलेंगे अभी कि आगे तो सॉफ्टवेयर डेव करनी होती है, तो क्यों लोग कॉम्पिटिटिव करने के लिए बोलते हैं, क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स करने के लिए बोलते हैं? उसका रीजन होता है, नोबडी इज लाइक सो फुलिश कि सब लोगों को सिमिलर एडवाइस दे रहा है, और इतने सारे लोग सिमिलर एडवाइस दे रहे हैं। सो द थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स हाउ अ कंप्यूटर वर्क, उसके अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसको अगर तुम्हें रूट में समझना है कि यार अभी तो क्या है, तुम डेवलपर हो, तुमने एंड्रॉइड सीख ली, तुम क्या करते हो? एंड्रॉइड से कॉल मारते हो, तुम कहते हो मेरे को एपीआई कॉल मारनी आती है। कभी सोचा एपीआई कॉल कैसे लगती है? तुम बोलोगे हाँ पता है, एचटीटीपी से लगती है, एचटीटीपी कॉल होती है। अब मैं पूछूं एचटीटीपी किसके ऊपर है, वहां पे बच्चे फंसने लगते हैं। फिर मैं कहूँ चैट एप्लीकेशन बनानी आती है क्या आपको? क्या आप लोग चैट बना? हाँ सर बना सकते हैं, आप ले लो इंटर्न, चैट बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कैसे बना सकते हो? कहते सॉकेट्स यूज करते हैं हम लोग, वेब सॉकेट। मैं कहता वेब सॉकेट किस चीज पे बने होते हैं? तो नहीं पता। अब तुम्हें जानने की जरूरत क्यों है? तुम कहोगे मेरे को जानने की क्या जरूरत है, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है या यहाँ पे वो बातें करनी है। तो एट लिंक्डइन हम लोगों ने अब लिंक्डइन के जो तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क का एक स्टैक होता है कि सबसे नीचे फिजिकल लेयर होती है, जो आपके तारे हैं, जो तार जा रही है इधर से उधर, ये फिजिकल लेयर है। फिर डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। फिर ऐसे एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ऐसे 4-5 लेयर्स होती हैं।
लिंक्डइन ने अपनी एक और लेयर डाली हुई है, प्रॉपर नेटवर्क लेयर डाली हुई है। आप लिंक्डइन के सर्वर पे जब कॉल करते हैं तो उसको एक और लेयर के थ्रू जाना पड़ता है। अब जब तुम्हें नेटवर्क का स्टैक ही नहीं समझ में आएगा तो तुम कैसे उस लेवल पे इंजीनियरिंग करोगे? और नेटवर्क का स्टैक समझने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क समझना जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क समझने के लिए तुम्हें नेटवर्क के एल्गोरिदम समझना जरूरी है। एल्गोरिदम समझने के लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम समझना जरूरी है। सिमिलर थिंग VMware जैसी कंपनीज हैं या इंटेल जैसी कंपनीज हैं जो वर्चुअल मशीन्स पे काम कर रही हैं या फिर हार्डवेयर लेवल पे चीजों पे काम कर रही हैं। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हार्डवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे एल्गोरिदम्स काम करते हैं, तो तुम क्या वहां पे लिखोगे? खाली वेब पेज बनाना है जिंदगी में तो बात अलग है। इवन वेब पेज पे अगर मैं आऊं तो कई लोग हैं मैं रिएक्ट में प्रो हूं, रिएक्ट में बनवा लो मुझसे कुछ। कभी सोचा रिएक्ट इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि वो डॉम को वर्चुअल डॉम में लाता है, और डॉम क्या है? ट्री है। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों वर्चुअल डॉम में चीज को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरा एलिमेंट डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वर्चुअल डॉम में चीजें करी जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ नोशन। तुम एक SD1 बन जाओगे पर सीनियर डेवलपर नहीं बन पाओगे इतनी जल्दी अगर तुम्हें लॉजिक नहीं पता होगा अंदर का। दैट्स व्हाई पीपल लर्न अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। apart from that you get a good thinking around corner cases। तुम्हें पता लग जाता है अच्छा ये चीज ऐसे कर रहे हैं, इसका ये कॉर्नर केस है, ये चीज ऐसे कर रहे हैं, इसका ये कॉर्नर केस है। तुम्हें कॉर्नर केसेस देखने आ जाते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि तुम कोई कॉर्नर केसेस छोड़ रहे होगे, क्योंकि आगे चल के तुम्हें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करना होता है। सब लोग गूगल कर सकते हो, एक टर्म होती है TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो जब तुम अच्छी कंपनीज में काम करोगे वहां पे तुम्हें पहले टेस्ट लिखना होता है, फिर कोड लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोड लिखा और वो चल गया और तुमने डाल दिया, ऐसा नहीं होता। आओ कभी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, तुम्हें पहले टेस्ट लिखना होगा फिर तुम्हें कोड लिखना होगा, क्योंकि गूगल कांट अफोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट कांट अफोर्ड कि तुमने कोड लिखा और वो फट गया। गूगल पे तुमने कुछ लिखा और लोगों की ट्रांजेक्शन एकदम लाखों लाख की ट्रांजेक्शन उड़ गई, उनके पैसे कट गए पर कहीं पहुंचे नहीं तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई पीपल आस्क टू डू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने के लिए तुम पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, रिकर्जन पढ़ो, राइट, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन कोडशेफ, कोड फोर्सेस। कॉम्पिटिटिव करना मैंडेटरी नहीं है। मैं अकेडमी में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगेन कॉम्पिटिटिव इज अगेन नॉट अ रेस। अगर आपको इंटरेस्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आप कॉम्पिटिटिव करिए, वरना आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स इतना करिए कि आप एक अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव के बिना भी जॉब लग जाती है। बट अगेन कॉम्पिटिटिव इज लाइक कि आपने जेई एडवांस की तैयारी करी है, आपका टारगेट जेई मेंस है, पर एडवांस लेवल की तैयारी करिए तो मेंस में नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे, काइंड लाइक दैट। पर जरूरी नहीं है कि आपको एडवांस की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि NIT त्रिची से भी अच्छा बच्चा अच्छी जगह प्लेसमेंट लेता होगा और IIT दिल्ली से भी सिमिलर जगह लेता होगा। तो आप NIT टारगेट करके चलो ना, बात समझ में आ रही है? बट अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं भाई मेरे को IIT ही जाना है, या फिर मैं कहूँ कि मेरे को कॉम्पिटिटिव करना है, मुझे ACM ICPC में जाना है, मेरे को मेडल्स लाने हैं कंट्री के लिए, करना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है, डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यू हैव टू डू। आप रिकर्जन वाले कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते। अभी सबके क्वेश्चन लेंगे, जो भी रेस कर रहे हैं प्लीज सबके क्वेश्चन ले लेंगे। रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, डायनामिक प्रोग्रामिंग को आप स्किप नहीं कर सकते, आप कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्राफ्स एंड ट्रीज को स्किप नहीं कर सकते। ऑल ऑफ देम विल बी यूज्ड इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लेटर। स्टार्टअप में काम काफी रैपिड इस पे होता है, बट आप जब अच्छी कंपनीज वगैरह में जाओगे तब आपको रियलाइज होगी एडवाइस। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करना है। अब इसके लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि कुछ रोड मैप्स वगैरह बता सकते हो क्या, कि कैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो रोड मैप्स एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लंबा जा सकता है। ठीक है, मैं एक ब्रीफ लेवल पे तुम्हें एक रोड मैपिंग बता सकता हूँ कि आइडियली बच्चे को क्या करना चाहिए। आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर में आपको कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए, एक लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज आती है, किसी के काम के हो नहीं। एक लैंग्वेज वाला भी उतना ही काम का है जितना आप काम के हो। एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स, जैसे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, बेसिक सर्चिंग एल्गोरिथम्स, थोड़ा स्टैक एंड क्यू, एरे, वेक्टर, ये सारी चीजें पता हो, और थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन टैकल करना आता हो, कि मुझे पता है GCD कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, बेसिक मैथमेटिक प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें पता हो, मॉड्यूलर अरिथमेटिक करना आ जाए, बेसिक मैथ आती हो। अगर आपको इतना आता है, आपने फर्स्ट ईयर में फुल मचाया है, मैं ये कह सकता हूँ। सेकेंड ईयर में आने के बाद, सेकेंड ईयर में थर्ड या फोर्थ में से किसी एक सेमेस्टर में आप डेव सीख लीजिए, एक पूरा सेमेस्टर लगा के डेव सीखिए, और उसके बाद साथ साथ एक पूरे सेमेस्टर में डेव करिए, उसके बाद डेव को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप दोबारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को उठाइए, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने की कोशिश करिए, ग्राफ, सेगमेंटरी, ट्राइज,
ये सब पढ़ने की कोशिश करिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए कोड शेफ कोड फोर्सेस पे, हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करिए ताकि आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो पाए। थर्ड ईयर में आने के बाद आप थोड़ा प्लेसमेंट सेंट्रिक चीजों पे प्रैक्टिस करिए कि आप लीड कोड पे प्रैक्टिस करिए चीजों को। थर्ड ईयर में आने के बाद आप इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस करिए, या करियर कप जो भी इंटरव्यू रिलेटेड वेबसाइट्स हैं आप उन पे भी कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करिए। बट कॉन्टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। कोड शेफ कोड फोर्सेस रेगुलर रखिए ताकि आपकी एक अच्छी रैंक बन जाए, तो आपको एक रेपुटेशन मिले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में, आपके वो रेज्यूमे में ऐड हो कि आपकी एक तरह की आपकी अचीवमेंट है कि आपने पूरे वर्ल्ड में कॉन्टेस्ट हुआ उस पर रैंक 1 ले आए आप, ये आपकी एक अचीवमेंट, आप उसको डालो। बट ऐसा मत सोचो कि कॉम्पिटिटिव करनी है क्योंकि जॉब चाहिए। डोंट रिलेट एवरीथिंग टू जॉब, डोंट रिलेट एवरीथिंग टू जॉब, ठीक है। तो और अगर कैंपस में प्लेसमेंट्स में कंपनी आती है तो अपने सीनियर से भी तुम बात कर सकते हो। लीड कोड लेवल के मीडियम हार्ड अगर तुमने क्वेश्चन लगाया तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत ही रेयर कंपनीज होती हैं जैसे स्प्रिंकलर, गूगल, डंजो, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल को स्ट्रेच कर देती हैं, वरना मोस्टली कंपनीज लीड कोड लेवल तक ही जाती हैं, क्योंकि वहां पे भी किसी को बहुत ज्यादा डीएसएल को नहीं आ रही है। तुम खुद सोचो, वहां पे जो बंदे हायर हुए हैं वो भी उसी डीएसएल को लेवल पे हुए हैं, तो तुमसे भी वही पूछेंगे ना। वो तुमसे कहाँ डीएसयू पे ऑफलाइन क्वेरी पढ़वा लेंगे जब उन्होंने आज तक डीएसयू नहीं कोड करा। तो इट्स अ थिंग लाइक दैट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक फॉर। अगर तुम्हें बहुत ही डिटेल्ड में रोड मैप वगैरह चाहिए, आई डोंट थिंक कि इस सेशन में हमें वो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं और आपके क्वेश्चन भी लेने हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड रोड मैप्स अभी एक हफ्ते के अंदर सारे पुट कर दूंगा। यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट, 5 मिनट्स के क्रिस्प रहेंगे, तो आप सीधा वहीं देख लेना ताकि हम यहाँ पे और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर पाए, ठीक है। एक और चीज की जो रिक्वेस्ट थी, जो ऋषभ एंड टीम ने मुझे बताया था कि मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा गूगल का और लिंक्डइन का। लाइक मुझसे लिंक्डइन में क्या पूछा, मुझसे गूगल में क्या पूछा गया। तो देखो, गूगल के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। गूगल के कोई भी एम्प्लॉय मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर कंप्लायंसेस। मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे ऊपर कंप्लायंसेस हैं, बट मैं ये नहीं बता सकता कि मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या थे। बट आई कैन टेल यू आई वॉज हैविंग 5 राउंड्स, 5 टेक राउंड्स, 1 नॉन टेक राउंड। पांचों के पांचों टेक राउंड्स 45 मिनट्स के थे। हर राउंड में 2 डीएस एल्गो के क्वेश्चंस थे। टॉपिक, ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक भी क्वेश्चन इन दोनों से अलग नहीं था, एक भी क्वेश्चन। मेरे से 3D डीपी भी पूछी गई, मेरे से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी पूछी गई, मेरे से शॉर्टेस्ट पाथ, डाइक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशंस, 01 बीएफएस वगैरह पूछा गया। तो गूगल में ऐसा था। मैं गूगल के बारे में इतना ही बता सकता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ था। आई अप्रोच टू फ्यू पीपल ऑन लिंक्डइन। मैंने कुछ इंजीनियरिंग मैनेजर्स को मैसेज करा कि भाई आपकी टीम में अगर हायरिंग है तो मेरे को रेफर कर दो, मैं स्विच के लिए भी लुक कर रहा हूँ और गूगल में काम करने का मन है। तो दे रेफर्ड मी, मेरे को 4 लोगों ने रेफर किया। तो और किस्मत की बात है कि मेरा जो रेफरल बोनस है, तो कोई तुम्हें रेफर क्यों करेगा, क्योंकि उनको रेफरल बोनस मिलता है और उन्हें एक पोटेंशियल कैंडिडेट मिलता है। तो मेरे को 4 लोगों ने रेफर किया और जो मेरा रेफरल बोनस था वो 4 लोगों में बढ़ गया। सैड, बट मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेफरल गया आगे। तो उसके बाद सीधा रिक्रूटर की कॉल आई। एक एलिमिनेटरी राउंड हुआ। एक एलिमिनेटरी राउंड के बाद 4 और डीएस एल्गो राउंड हुए। एक एलिमिनेटरी राउंड भी डीएस एल्गो, 4 और डीएस एल्गो राउंड हुए। एक नॉन टेक टाइप का राउंड हुआ और लगा लो 1 महीने बाद रिजल्ट आता है कि हाँ भाई आप सेलेक्ट हो गए हो। फिर उसके 1 महीने बाद आपका आता है कि कब आप कौन सी टीम के लिए सेलेक्ट हुए हो, कहाँ ज्वाइनिंग है, क्या कितना पैसा मिलेगा आपको, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात करते हैं अगर लिंक्डइन की। लिंक्डइन का मैं डिटेल में बता सकता हूँ। सो हाउ थिंग्स वर्क एट लिंक्डइन। लिंक्डइन में भी मैंने रेफरल के लिए अप्लाई किया था। सो देयर वाज अ गाय फ्रॉम डीटीयू। इफ यू डोंट नो अबाउट डीटीयू, डीटीयू इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाउडेज। वहाँ पे कोई 2018 का पास आउट था। मैंने उनको मैसेज करा, वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने उन्हें मैसेज करा कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं बैंगलोर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लिंक्डइन में हायरिंग चल रही है, आप मुझे रेफर कर दो, ये मेरी प्रोफाइल है, अगर आपको इंटरेस्टेड लगती है तो प्लीज रेफर मार दो। उसने मेरे को रेफर मार दिया। रेफर करने के बाद मेरे को एचआर की कॉल आई। एचआर ने कहा कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। मैं कहा ठीक है। हैकर रैंक पे ऑनलाइन टेस्ट हुआ। आई गेस 90 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट था। 3 क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, बट मेरे को मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी याद है। एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी का था, बेसिक नंबर थ्योरी थी कि एक एरे गिवन है, एरे के ऊपर तुम्हें a रेज़ टू द पावर b mod c हर एलिमेंट के लिए करना है। तो अगर तुम्हें पता है कि a रेज़ टू द पावर b mod c एफिशिएंटली कैसे करते हैं, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन से करते हैं, तो तुम n log n में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो मतलब 5 मिनट में सॉल्व हो गया था। दूसरा क्वेश्चन लीड कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक ग्रिड गिवन है, ग्रिड के ऊपर नाइट्स हैं और
कुछ ऐसा था कि ग्रिड के ऊपर एक नाइट है और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन तुम्हें बताना था कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो प्रॉपर BFS, सिंपल BFS। थर्ड क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। डीपी और हैश मैप और स्ट्रिंग्स, 3 कॉन्सेप्ट को मिला के वो बन रहा था। तो मैंने तीनों क्वेश्चन कर दिए थे। तो लिंक्डइन में ऐसा होता है कि अगर आपने 3 में से मान लो 2 या 2.5 क्वेश्चन करे तो भी कॉल आ जाती है, पर एक राउंड ज्यादा होता है। पर क्योंकि मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन कर दिए थे तो मेरा एक राउंड कम हुआ था। तो उसके बाद ऐसा था कि मेरे 2 DSL को राउंड हुए थे। 2 DSL को राउंड में पहले राउंड में मेरे से एक स्ट्रिंग्स का बेसिक क्वेश्चन, मतलब वो कह रहे थे कि एक वर्ड्स की स्ट्रिंग है, वर्ड बाय वर्ड रिवर्स कर दो, 2 मिनट में कर दिया था। एक ट्रीज का बेसिक क्वेश्चन ये पूछा था। सेकेंड राउंड में एक और ट्रीज का क्वेश्चन था, कुछ मतलब ट्रीज के लीड कोड के क्वेश्चंस में से था, क्योंकि ट्रीज के इतने ज्यादा क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन हीप्स का था। हीप्स का शायद ऐसा क्वेश्चन था कि एक 2D एरे है और 2D एरे में तुम्हें मतलब कुछ रो या कॉलम वाइज किसी एक तरह से सॉर्टेड है और तुम्हें kth लार्जेस्ट निकालना है। वो हीप का प्योर क्वेश्चन है, मतलब हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्लास में भी वो पढ़ाते हैं। तो वो हीप का एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रायोरिटी की उसका। इसके बाद मेरा एक राउंड हुआ था सिस्टम डिजाइन। अब मेरा सिस्टम डिजाइन राउंड क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था वो 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस पोजीशन थी। ऑल्दो मैं 2020 ग्रेड हूँ, बट मेरे को उस पोजीशन के लिए रेफर मिल गया था। उनको नहीं पता था कि मैं 2020 ईयर ग्रेड हूँ, क्योंकि HR ने ध्यान नहीं दिया था और मेरे को डाल दिया था कि चलो लो इसके इंटरव्यू में। तो सिस्टम डिजाइन पूछा गया था। सिस्टम डिजाइन में आई वाज आस्क्ड कि हाउ टू डिजाइन अ सिस्टम टू कैलकुलेट टॉप के ट्रेंडिंग ट्वीट्स। ट्वीट होते हैं ना, ट्विटर पे ट्वीट होते हैं, तो या टॉप 10 हैशटैग जो होते हैं, जो भी है, तो टॉप के सिस्टम। तो ये सिस्टम डिजाइन का एक क्वेश्चन होता है, टॉप के हैवी हिटर्स, उससे सॉल्व होता है। तो वहां पे मैंने वो बता दिया था। उसके बाद एक राउंड हुआ था जो प्रोजेक्ट राउंड और ऑपरेटिंग मतलब कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल राउंड था। उसमें मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चंस थे। लास्ट राउंड मैनेजर राउंड था। वो बस आके क्यों लिंक्डइन ज्वाइन करना है, बढ़िया लगता है, या भी कहाँ पे जो काम कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक्सपीरियंस था लिंक्डइन के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिंक्डइन का इंटरव्यू मेरे सारे दिए हुए इंटरव्यूज में से सबसे आसान था, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। गूगल का इंटरव्यू सारे इंटरव्यूज में दिए हुए आई गेस टफेस्ट या सेकंड टफेस्ट कह लो। टफेस्ट मेरे हिसाब से इंटरव्यू बिट और डंजो का इंटरव्यू था, उसके बाद गूगल का था आई बिलीव। हो सकता है ये भी है कि मैं तब तक इवॉल्व कर गया उतना, बट क्योंकि इंटरव्यू और डंजो का इंटरव्यू मैंने बहुत पहले दिया था। तो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर लिंक्डइन एंड गूगल। गूगल के मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, अगेन ऑलरेडी तुम्हें बताया कंप्लायंसेस है, बट अगेन DSA ही पूछेगी। अगर तुम SD1 हो, मतलब L3 के लिए अगर जा रहे हो, SD1 SD2 के लिए जा रहे हो, तो तुमसे 90% ऑफ द चीज़ें DSL को ही पूछी जाएंगी। वो लोग ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि अच्छा संकेत टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नो, संकेत ओपन द गूगल डॉक, दिस इज द क्वेश्चन, स्टार्ट। जो कोडिंग होती है वो तुम्हें गूगल डॉक्स पे करनी होगी। अब देखो, मैं एक ऐसी जनरेशन से आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्री कोविड भी इंटरव्यूज दिए हैं, पोस्ट कोविड भी इंटरव्यू दिए हैं। मतलब पोस्ट कोविड मतलब पोस्ट द एंट्री ऑफ कोविड, अभी पोस्ट कोविड में पहुंचे नहीं है। तो प्री कोविड में मैंने स्प्रिंकलर के, ग्रोफर के और इंटरव्यू बिट का इंटरव्यू दिया था। तो जब आपके सामने सामने कोई इंटरव्यू हो रहा है तो आपको पेन एंड पेपर पे कोड लिखना होता है। बट अब आजकल क्योंकि ऑनलाइन सिनेरियो है तो गूगल डॉक्स या फिर कोई ऑनलाइन आईडीज होते हैं, गूगल का गूगल डॉक्स पे होता है, या फिर कुछ ऑनलाइन आईडीज होते हैं, वहां पे कोड करना होता है। ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पेपर पे आपने लिखा, आपने गलत कर दिया तो आप उसको पेन से काटोगे, वो टाइडी नहीं होता। यहाँ तो क्या, बैक स्पेस दबा दो, तो थोड़ा सा लेवरेज रहती है। तो मैंने दोनों तरह के इंटरव्यू दिए हैं, स्प्रिंकलर वगैरह में भी मैं सेलेक्ट हुआ था, यहाँ पे गूगल वगैरह में भी मैं सेलेक्ट हो गया। तो यू हैव टू बी श्योर कि 90% ऑफ द कंपनीज बहुत ज्यादा इस पे रन करके नहीं देखती कोड, कि आपने बिल्कुल अच्छा वेक्टर के आइटरेटर के पहले 2 कोलन लगते हैं, आपने एक ही कोलन लगाया था तो एरर आएगा, इतना नहीं करता कोई। लॉजिक देखते हैं कि आपने जो लिखा है वो लॉजिक सही है नहीं है, क्योंकि कंपनी में आके तो आप गूगल करोगे ना, कंपनी में आके तो इंटरनेट होगा, वहां कर लेना गूगल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है लॉजिक बिल्डिंग पे। क्यों लॉजिक बिल्डिंग पे, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि कंपनीज इंटरनली ऐसा टेक यूज करती हैं जो आपको बाहर पता भी नहीं है। बाहर बच्चे जावा में पढ़ते हैं स्प्रिंग बूट, जावा में पढ़ते हैं प्ले फ्रेमवर्क, लिंक्डइन इंटरनली यूज करते हैं रेस्टली। कभी तुम 250 में से 250 बच्चों ने नहीं सुना होगा रेस्टली क्या होता है, मैंने नहीं सुना था, मेरे को पहली बार पता लगा क्या है ये क्या कैंसर है। तो इंटरनली क्या यूज होता है वो तुम बाहर यूज नहीं करते, ठीक है। बाहर आप लोग रेस्ट एपीआईज बनाते हो, इंटरनली कई जगह पे रेस्ट कन्वेंशन यूज ही नहीं होता। एक नया कन्वेंशन आ चुका है GRPC,
वो यूज होता है, आपको पता ही नहीं क्या होता है। तो आपको सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे जज करना है ना, तो कैसे जज करेंगे? तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे जज करेंगे और थोड़ा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल पे जज करेंगे कि आपको पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे काम निकालना, मतलब नॉर्मलाइजेशंस क्या हैं, क्वेरी कैसे करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पता है, आपको पता है मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में आपको पता है कि नेटवर्क का स्टैक क्या है, कैसे नेटवर्क राउट करता है, HTTP कॉल मारने पे क्या होता है, TCP क्या है, क्यों TCP जरूरी है HTTP के लिए, सॉकेट्स क्या हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। कोई भी आपसे बहुत ज्यादा हार्डकोर, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं पूछती। अगर आपको मैं हाथ पे गिन सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन, स्प्रिंकलर, डायरेक्ट आई की जो बाकी सिस्टर कंपनीज है, मीडिया.नेट और जीटा वगैरह, गूगल, टावर रिसर्च, आई बिलीव ये 7-8 कंपनीज है जो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव की तरफ स्ट्रेच करके ग्रिल करेंगे। डेंजो वंजो, एक दो स्टार्टअप्स भी हैं, इंटरव्यूटर, डेंजो वगैरह। बाकी मोस्टली कंपनीज लीड कोड वगैरह से काम चल जाता है उनका। बट अगेन, बीइंग अ गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हेल्प्स यू टू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये वाले लीड कोड के क्वेश्चन काफी ऐसे हलवा टाइप लगते हैं कि यार मतलब ये तो हो ही जाएगा। ग्राफ तो मतलब इतनी जगह लगाया कि यार किसी क्वेश्चन नहीं भी लग रहा ग्राफ तो मैं ग्राफ से ही कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, तो मतलब मैंने देखा है 2 तरह के प्रोग्रामर होते हैं, जो पहले ट्री पढ़ते हैं फिर ग्राफ पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो पहले ग्राफ पढ़ते हैं फिर ट्री पढ़ते हैं। तो आई लाइक द लेटर वन, आई डू लाइक। ठीक है, सो दिस वाज माय लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ लाइक गूगल एंड लिंक्डइन। अगर मैं इंटर्नशिप्स की बात करूं, मैं बस इसको लास्ट पॉइंट रखूंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। अगर इंटर्नशिप्स की बात करूं, इंटर्नशिप्स आर नॉट मैंडेटरी। अगर आपकी इंटर्न नहीं लग रही है तो ऐसे स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, ऐसे नस काटने की कोई बात नहीं है अगर इंटर्न नहीं लग रही है। मेरा एक फ्रेंड है सार्थक जैन, मैं नाम लूंगा क्योंकि मेरा बहुत ही डियर फ्रेंड है, तो वो मेरे पे प्राइवेसी कंसर्न नहीं लगा सकता। तो वो मतलब टेक नॉन टेक के बीच वाले, तो एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस होती है जिनको बहुत ज्यादा टेक भी नहीं पसंद और बहुत ज्यादा नॉन टेक भी नहीं पसंद। उनको बिल्कुल ऐसे हार्डकोर कोड नहीं करना, बट उनको ऐसे एक्सेल शीट भी नहीं बनानी। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाज समथिंग दैट ही वाज लुकिंग फॉर। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंडिया में बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स नहीं मिलती हैं, तो उसने ऐसी मतलब ऐसे सिंपल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो टाइप्स, वहाँ एक इंटर्न मार ली थी, और एक आधी इंटर्न ऐसे मतलब जान पहचान में कुछ कुछ कर लिया। बट उसने अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया। ही ज्वाइंड फ्रॉम आवर कॉलेज, ही वाज लाइक मेरे कॉलेज में सबसे बढ़िया कंपनी आती थी ZS एसोसिएट। वो तुम्हें 8-9 लाख का CTC देती थी, अब 10 कर दिया उन्होंने CTC, बेस उसका 6.5 लाख होता है। उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था, डे 0 कंपनी में वो सेलेक्ट हो गया था। तो उसके पास अच्छा खासा टाइम था पूरा साल का, उसने अच्छे से प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया। उसने ZS ज्वाइन करी, ऑलमोस्ट 1 साल ZS में बताया। नाउ ही हैज ज्वाइंड फोन पे, इंडिया टॉप फाइनेंस स्टार्टअप। अब स्टार्टअप भी नहीं है, थोड़ी देर में IPO मार देंगे वो लोग भी। ही हैज ज्वाइंड फोन पे एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। तो मतलब जरूर अब तो उसके ऐसा तो है नहीं कि उसने गूगल में इंटर्न करी थी तो फोन पे वालों ने ले लिया, और फोन पे ऐसी कोई छोटी इतना पैसा बरसाएगी आपके ऊपर कि आपको पता नहीं लगेगा। इट्स ऑल अबाउट परसिवरेंस, कि आप कितना डेडिकेटेड हैं, कितना परसिवरेंस शो कर रहे हैं अपने ओवरऑल गोल की तरफ। Internships help you to build a good resume and get you some exposure of the industry. Even if you don't have that exposure, it's perfectly fine. Don't rant about the fact कि अच्छा ये इस अपॉर्चुनिटी में तो मेरे को लिया ही नहीं, यहाँ पे बायस हुआ, यहाँ चीटिंग हुई, ये हुआ। There will be cheating, there will be bias everywhere in every stage of the life. अब किसी हॉस्पिटल जाओगे, वो अक्षय कुमार की पिक्चर में करते हैं ना, वो हॉस्पिटल जाते कहते हैं पहले फॉर्म भरो। That's a bias. You will face bias at every stage of life, but you can't rant at every stage of life. You can only work on that. If you will ask me, मेरी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न नहीं लगी, मेरी किसी अमेजोन में इंटर्न नहीं लगी थी, मेरी गलती की वजह से नहीं लगी थी। सो मेरे को पहले से ही रेफरल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि रेफरल का कॉन्सेप्ट बहुत सही चलता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर को रेफरल के लिए भेजा, उसने रेफर कर दिया, पर फिर भी मैं माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि साहब जी ने जहाँ पे रेफर किया मुझे, वो PhD अपॉर्चुनिटी थी और मैं बीटेक नहीं था, मैं PhD अपॉर्चुनिटी के लिए रेफर हुआ था। सीधा रिजेक्शन आया मुझे। सारे बच्चे, ऑलमोस्ट मेरे कॉलेज के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट दे रहे थे, मैं नहीं दे रहा था। बट ठीक है, मैं सर नहीं फोड़ सकता, उसको जाके गलत थोड़ी दबा दूंगा कि अरे ये क्या रेफर कर दिया मुझे। ही एटलीस्ट रेफर्ड, एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा रेफरल अच्छा सीन है, अपना काम बन जाएगा। फिर मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन गया, हार के आ गए हम लोग। बट मैं इसरो की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर गया, और इसरो के डायरेक्टर्स हमारी टीम के पास आए, उन्होंने कहा कि हमें आपको जिता नहीं सकते क्योंकि आपने जो डेटाबेस यूज करा वो ओपन सोर्स है। हमारी टीम में 2 जी सॉकर थे, क्या एक्सपेक्टेशन रहती।
दो ओपन सोर्स के लिए दो क्रेजी बंदे थे, हमने फोर्स करके ओपन सोर्स कर लिया था, हमें पता नहीं था इसरो ने डेटाबेस दिया है, तो उन्होंने कहा डेटाबेस की वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, बट वी वांट टू ऑफर यू एन इंटर्नशिप। अगर आप 1 हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हो, इस कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं आपका शाम तक लेटर भिजवा दूंगा। आप अभी हारोगे, मतलब उन्होंने बताया कि भाई ये तो तुम्हारा उतना नहीं बनेगा, शाम तक अब तुम अपने रूम्स में पहुंचोगे, तुम अपना बैग पैक करोगे, शायद ट्रेन के लिए निकलोगे, उससे पहले तुम्हें लेटर आ जाएगा। अगर तुम कर सकते हो तो मैं आज के आज तुम्हारा लेटर प्रोसेस कर दूंगा। एंड वी गॉट एन इंटर्नशिप एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल कंट्री। इसरो से ज्यादा बड़ा टेक किसी कंपनी के पास नहीं है इंडिया में। तो मतलब ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, इसरो में मिली, फिर जीसॉक की अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो अपॉर्चुनिटीज विल कम, समटाइम्स यू विल गेट इट, समटाइम्स यू विल लूज इट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड अगेन। हर रोज सुबह उठते हो ना, रात को पापा से डांट पड़ी तो ऐसे थोड़ी सोए और सोए रह गए, आप उठूंगा ही नहीं, अगले दिन फिर उठते हो कि अच्छा पापा को इम्प्रेस करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अब नहीं मार खाएंगे, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है वो नाराज पड़ी है, मम्मी को इम्प्रेस करना है वो नाराज पड़ी। हर दिन यू वेक अप, दिस लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन is all about ki you wake up every day, because that's a fresh start, that gives you a notion that after a loss there is a fresh start and you should make a fresh start. तो rant करना बंद करो, काफी लोग आजकल rant करते हैं कि ये हायरिंग आ रही है, वो हायरिंग आ रही है, आपके लिए भी हायरिंग आएगी। जॉब लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है, अगर आप 3 से 4 साल डेडिकेटेडली पढ़ोगे, जेई से आसान चीज होती है, आराम से जॉब लग जाएगी। बस हर चीज जॉब के हिसाब से मत पढ़ो, कुछ चीज इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका एंड्रॉयड में बहुत इंटरेस्ट था, उसने बस काम भर की डीएसएल को पढ़ी जिससे वो इंटरव्यू निकाल पाए, वो जोमेटो में एंड्रॉयड डेवलपर बन गया, जोमेटो का आईपीओ हो चुका है। तो आगे मैं ना बोलूँ तो बढ़िया है ना। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितना ज़्यादा परसीव कर रहे हो और कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ओपन सोर्स इज अ वेरी गुड थिंग टू गो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर मस्ट टू डू, पिक वन लैंग्वेज, डोंट रश फॉर लैंग्वेजेस। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज छोटे स्टार्टअप में भी मिलती है तो करो। मैंने इतने छोटे स्टार्टअप में इंटर्न करी है ना, इतने छोटे स्टार्टअप में जहाँ पे अनपेड इंटर्न थी, अनपेड इंटर्न करी है पहले मैंने। दूसरी इंटर्न करी थी जो मुझे 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड देते थे, और लगा लो 30 में से 25 दिन काम करना होता था, 8 से 9 घंटे, 9,000 रुपये स्टाइपेंड पे। देन आई गॉट एन इंटर्न जो मुझे 30 के पर मंथ या 25 के काइंड ऑफ पर मंथ देने लग गए। इसरो में पेड नहीं था, बस मैं ये बता दूं, इसरो बस ब्रांड दे रहा था हमें, और अपना वो मेरे गली में आधे लोगों को लगता था कि चंद्रयान पे काम कर रहा हूँ मैं, तो इस ये मोटिवेशन देता था बस, और मैं नहीं कर रहा था चंद्रयान पे काम। तो वो एक अनपेड इंटर्न थी। सो डोंट लुक आउट फॉर थिंग्स कि अच्छा ये तो हमें हमारे लिए नहीं है, ये वो। मैं कहता हूँ कि इंटर्नशिप अनपेड मत करो, क्योंकि कई लोग ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, बट इनिशियल डेज में एक आधी करनी पड़ सकती है। छोटे स्टार्टअप में इंटर्न करो, जॉब बढ़िया सबकी लग जाती है, 1 साल में 2 साल के अंदर यू विल टेक अ शिफ्ट, यू विल गेट वेरी वेरी गुड पैकेजेस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, सब लोगों के क्वेश्चंस थोड़ा बहुत लेना स्टार्ट कर सकते हैं। यस भैया, थैंक यू फॉर दैट भैया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। गाइस, अभी हम लोग एक फीडबैक फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे चैट में, जिसमें आपको इस इवेंट की बाकी सारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसके साथ प्रोवाइड हो जाएंगी। सो गाइस, मेक श्योर टू फिल दैट, और गाइस सर्टिफिकेट्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू दोज हु फिल द फीडबैक फॉर्म। हाँ, फीडबैक फॉर्म के साथ आपको मेरे गूगल समर ऑफ कोड का प्रपोजल का पीडीएफ, ऑल्दो पीडीएफ हर जगह कई जगह पहुंची हुई है, पर यहाँ पे आपको सीधा आपके मेल पे आ जाएगा, और मेरे रेज्यूमे कि मैंने क्या रेज्यूमे बिल्डअप किया था, द सेम रेज्यूमे आई सबमिटेड फॉर गूगल, तो वो रेज्यूमे मिल जाएगा, तो आप थोड़ा टेम्पलेट कर सकते हो। आई ऑल्सो मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर द रेज्यूमे पार्ट, तो तुम लोग वो जाके देख सकते हो। ठीक है, पर ये डॉक्यूमेंटेशन ये लोग आपको सीधा भेज देंगे, तो आपको ज़्यादा हैसल नहीं करना होगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। नाउ वी कैन टेक अप सम क्वेश्चंस आई गेस, ऋषभ। यस भैया। सो गाइस, आप लोगों ने गूगल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे अपने, सो आवर टीम हैज़ रिजॉल्व्ड सम ऑफ दोज क्वेश्चंस। भैया ने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बोलते बोलते ही आंसर कर दिए, बट स्टिल सम ऑफ दोज विच आर लेफ्ट, सो विल बी टेकिंग सम ऑफ देम। एक काम और करते हैं, एक काम कर सकते हैं क्या कि हाँ भैया। कमेंट्स ऑन कर देते हैं, ताकि कमेंट्स में अगर किसी के अभी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पिक कर पाए, हाँ पिक यस। कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई बच्चों ने हैंड्स अप कर रखा है, तो मे बी वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। यस भैया।
Guys, we'll be opening the chat. आप लोग अपने questions और doubts जो हैं आपको वो chats में लिख सकते हैं. आपके questions भैया थोड़ी देर में answer कर देंगे. खैर अब chat पे लिख दो. Please maintain the decorum for the chat. Yes, sir. And chat option on हो गया है, सब लोग लिख सकते हो अपना question अब. how to be driven भैया, मतलब I'm expecting the question to be like कि dedicated कैसे रहना है और motivation lose नहीं करनी है. Is that your question, Vedant? Yes, भैया. क्वेश्चन है, I guess ये क्वेश्चन है. ठीक है. हम्म. देखो यार, मतलब I know कि 4 years is a long time. 4 years is a long time. आप लोग कोड करते होंगे, आपसे क्वेश्चन सबमिट नहीं होते होंगे. साथ ही साथ आप लोगों को लगता होगा कि मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी. इट्स ऑल अबाउट कि कितना डेडिकेटेड आप रहते हो. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट आप कितना डेडिकेटेड रहते हो. जस्ट थिंक ऑफ लाइफ ऑफ अ चेस प्लेयर. मैं अपने सारे सेशंस में यही एग्जांपल देता हूँ. आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट चेस प्लेयर्स. सो तुम खुद सोचो, विश्वनाथन आनंद जब खेलना शुरू किए, बचपन में किए होंगे कभी, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है, तो सब मैच जीत जाते थे? सब मैच जीते होते तो अभी वर्ल्ड चैंपियन अभी भी होते ना, एक बार के लिए नहीं होते ना. there will be always ups and downs, but you have to be dedicated. कभी भी चेस प्लेयर चेस बोर्ड पहली बार ये सोच के नहीं उठाता कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा. ये सोच के उठाता है, अरे ये तो गेम है भाई, इसमें तो इससे तो करने में मजा आएगा. चेस खेलने में मजा आएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, खेलना पड़ेगा. खेलने में तो मजा आता है. दिस इज द फर्स्ट intuition that someone gets while seeing chess. मेरे को पहली बार देखा था, अच्छा चलो कम से कम हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी ना, चेस खेलेंगे, है ना? तो you should get interest. If you are interested enough in something and you find fun in something. देखो जैसे गर्लफ्रेंड बनाई, ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हें लगेगा. गर्लफ्रेंड बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि you are interested in someone. किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो तुम बात नहीं करते ना उससे. You are interested, that's why you dedicate your time. तुम पूरा दिन कॉल पे स्पेंड करते हो. So if you will find interest in something, अगर तुम्हें कोडिंग सच में इंटरेस्ट कर रही है और तुम्हारे पास एक एंड गोल है, एक मोटिवेशन है, एक नोशन है, then just think about it. यार थोड़े टाइम की तो बात है, अभी नहीं हो रहे सबमिट क्वेश्चन, नहीं बन रहे क्वेश्चन, नहीं बन रहा लॉजिक, आज नहीं बन रहे, 2 महीने नहीं बनेंगे, 1 साल नहीं बनेंगे, कितनी देर तक नहीं बनेंगे? जब वो बच्चा बना सकता है जो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में है, व्हाई कांट आई? सो ये दिमाग में रखो. हमेशा चेस प्लेयर्स को दिमाग में रखो, या हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिमाग में रखो. तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था और उसके बाद मारी थी 200. ये सोचो, तेंदुलकर बनना है ना? मैनेज स्किल्स विद गेट सीएससी. आई बिलीव कि गेट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. आई नेवर डिड इट, बट आई बिलीव कि गेट से आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग नहीं होती है. सो गेट की प्रिपरेशन आप 3rd ईयर वगैरह में रखें तो बेटर है. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 4th ईयर में शुरू में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में अगर कुछ प्लेसमेंट निकाल के उसके बाद गेट की प्रिपरेशन करें तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके क्लियर नहीं होते. आईआईटी जेईई हमें बहुत पहले सिखा चुका है. जस्ट थिंक अबाउट इट. जावा इज द बेस्ट फॉर प्लेसमेंट. शुभम ठाकुर 2 घंटे बोला भाई मैंने ऑलमोस्ट कि ये लैंग्वेज नहीं भाई. मेरी तरफ से रेकमेंडेशन सर, हाउ टू गेट जॉब इन गूगल विदाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. एज आई सेड, कॉम्पिटिटिव इज नॉट मैंडेटरी, but they ask a bit difficult questions than normal lead code question that you can assume to be around the competitive border, but again competitive necessary नहीं है. डीएसए कहाँ से पढ़े और आपने कहाँ से पढ़ा था भैया? देखो मैंने जहाँ से पढ़ा था वो रिसोर्सेज अब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होंगे. मेरे हिसाब से आप काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज चेकआउट कर सकते हो. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं. अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आप फ्री वाले रिसोर्सेज देख सकते हो. मैं यहाँ पे कोई पेड कोई प्रमोशन नहीं करूँगा. मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 घंटे का फ्री कंटेंट डेवलप किया है पिछले 8-9 महीने के पीरियड में. और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ 10 और एजुकेटर्स ने करा, तो वहाँ पे 5-6 हज़ार घंटे का फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है. सिमिलर थिंग यूट्यूब पे है. अपने मेरा काफ़ी डियर फ्रेंड है राज स्ट्राइवर, तुम उसके सेशन जाके चेक कर सकते हो. एक चैनल है कोड एंड कोड, वो बढ़िया क्वेश्चंस बनाता है. तो मतलब यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी. अब देखो पेड तो यार तुम्हारे ऊपर होता है, तुम कैसे करोगे. मैं कुछ एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं पेड और फ्री कोर्सेज के ऊपर कुछ बात करूंगा, बट लेट्स स्टिल प्लान. रोड मैप फॉर 3rd ईयर. रोड मैप की यार वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज करूंगा, अंकिता क्षत्रिय. आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना. यहाँ पे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मतलब मैं 5-7 मिनट बोलूंगा तो उतने में मैं 2-3 क्वेश्चन कवर कर लूंगा. जस्ट सेकंड गाइस, फीडबैक फॉर्म चैट में अवेलेबल है. आप सभी जाकर के फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए.
ताकि आपको रिसोर्सेज आपके मेल तक मिल जाएंगे। Okay. Yes, भैया। Abhi, I'm in 4th year and I am somehow had started at CP 3. I'm getting offers from but I'm interested in CP and learning London. What should I do now? Should I मेरे हिसाब से आपको ये देखना चाहिए आपको लॉन्गर टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो आप थोड़ा सा और बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ एक्सप्लोर करो। अगर आपको ये एल्गोरिथम्स वाला पार्ट और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट ही अच्छा लगता है तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह पार्ट पे रिसर्च वगैरह में जाना चाहिए। आई बिलीव दैट शुड बी समथिंग। या फिर आप कोड शेफ, कोड फोर्सेस, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम सेटर वगैरह। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज डीएस एल्गो वाले फील्ड में होती हैं। हाउ टू इम्प्रूव डीएस एंड एल्गो, वैभवी। एक बहुत ही स्मॉल एग्जांपल दूंगा मैं डीएस एंड एल्गो कैसे इम्प्रूव करना है। सब लोगों ने चैट में एक बारी, चलो चैट में बताओगे तो दिक्कत होगी, हैंड्स रेज करो किसने किसने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा हुआ है। हैंड रेज करो किसने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा हुआ है। हैंड रेज करो, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना प्लीज। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव लर्नड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी 50 से ऊपर बच्चे हैंड्स रेज कर चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि 50% जनता तो जानती ही होगी। ठीक है, अब तुम्हें सिलेक्शन सॉर्ट पता है क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? एक एलिमेंट है, वो अपने आगे चीजों को ढूंढता है, जो सबसे छोटा एलिमेंट अपने मेरे से आगे राइट साइड में मुझे मिला उसको स्वैप करता है। सिर्फ इतना करता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो आगे ये छोटा एलिमेंट ढूंढने के लिए मिनिमम एलिमेंट निकालने की कोशिश करता है। कैसे निकालता है? लीनियर सर्च का यूज करके निकालता है। अब एक अनसॉर्टेड एरे है, उसमें से तुम्हें मिनिमम एलिमेंट चाहिए, बार 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 सॉर्ट नहीं कर सकते, वरना बाइनरी सर्च लगा लेते। तो कैसे करेंगे? अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक अनसॉर्टेड स्पेस है और मुझे उसमें से मिनिमम चाहिए, तो मेरे पास दो रेडिली अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सेगमेंट ट्री और हीप। अब सेगमेंट ट्री का साइज रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो क्या है, एक बार मिल गया तो अनसॉर्टेड रीजन का साइज छोटा होता जाता है, सेगमेंट ट्री नहीं लग पाएगा, तो क्या लग जाएगा? हीप लग जाएगा। और जब आप इस अनसॉर्टेड रीजन में से मिनिमम एलिमेंट हीप का यूज करके निकालते हैं, वो हीप सॉर्ट होता है। अगर आपने ऑलरेडी सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा हुआ है और आपको हीप आता है, तो आपको अलग से हीप सॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैंपस में जाके पूछना, आधे बच्चों को हीप सॉर्ट नहीं आता था, क्योंकि वो लोग हीप सॉर्ट रट लेते हैं कि हीप सॉर्ट ऐसे, अच्छा लास्ट एलिमेंट है उसको हीप में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहता हूँ आपको आता है हीप सॉर्ट, रटना क्यों है? सो यू नीड टू लर्न द इंट्यूशन बिहाइंड एन एल्गोरिथम। अगर आपने कोई एल्गोरिथम पढ़ा है तो आपको उसका इंट्यूशन पढ़ना है, ना कि रट लेना है उसको। दैट इज समथिंग विद व्हिच यू कैन इंप्रूव डीएसएन एल्गो। ठीक है भैया, सॉरी टू इंटरप्ट वंस अगेन। हम्म। गूगल फॉर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो सम ऑफ द गाइज आर प्रेजेंटर्स राइट नाउ, तो वो क्वेश्चंस बोलना चाहेंगे। हाँ या श्योर, मेक सेंस। गाइस, तो मैं कुछ लोगों के चैट से डायरेक्ट कर दूंगा। हाउ टू बिल्ड लॉजिक शायद आंसर कर दिया मैंने। भैया जैसे ये क्वेश्चन आया था, राधिका ने पूछा था कि हाउ टू गेट गुड इंटर्नशिप्स इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड स्टार्ट माय इंटर्नशिप जर्नी। अच्छा, तो देखो स्मॉल स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप मिलना आसान होता है। क्यों आसान होता है? जैसे कॉलेज में आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, तो जब लोग डेव वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम आप अपने दोस्तों से बात करो, अच्छा तेरी कहीं इंटर्न लगी है क्या, यार मेरी भी लगवा दे। या फिर आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर सकते हो, या फिर मान लो आप कहीं से, कुछ लोग पेड कोर्सेज वगैरह लेते हैं, तो जो पेड कोर्सेज वगैरह लेते हैं जहाँ से, तो उनके जो एजुकेटर्स होते हैं उनके छोटे छोटे स्टार्टअप्स में जान पहचान होती है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप चला रहे हैं, सो यू कैन कंसल्ट देम। ठीक है, तो ऐसे तुम अपने छोटे इंटर्नशिप्स ले सकते हो। एक वेबसाइट है angel.co, एक वेबसाइट है angel.co, वहाँ पे काफी सारे स्टार्टअप्स लिस्टेड होते हैं, तुम वहां जा सकते हो। लिंक्डइन पे तुम छोटे स्टार्टअप्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि कौन कौन से नए स्टार्टअप्स खुले हैं, किसी ने कमेंट वमेंट में करा है, हायरिंग वायरिंग दूसरों के कमेंट्स वगैरह में तुम देख पाओगे, तो वहां से तुम्हें थोड़े बहुत स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संकेत सिंह ही है, लाइक मेरे नाम पे ही है, तो आई गेस इजीली मिल जाऊंगा। एक और क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा, प्रांशु पूछ रहे हैं, भैया कैन यू सजेस्ट गुड बुक फॉर डीएसए। मेरी रिकमेंडेशन 2-3 बुक्स की रहेगी। एक बुक है कॉर्मन, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय थॉमस एच कॉर्मन, 1500 पेज की किताब है, पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, मैंने आधी पढ़ी हुई है।
एक बुक है कारुमांची की, फ्रॉम नरसिम्हा कारुमांची, बेसिक्स ऑफ डीएसए पढ़ने के लिए अच्छी है। अगर आप जावा में डीएसए पढ़ना चाहते हो तो एक किताब आती है रॉबर्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बाय रॉबर्ट लाफोर, तो आप वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, और कुछ किसी को unmute- क्वेश्चन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसे अवेल करें? ठीक है, ऑफ कैंपस को टच करना इंपॉर्टेंट है। देखो ऑफ कैंपस में सिनेरियो क्या होता है, जब तुम दिसंबर ऑफ 7th सेमेस्टर में होगे, दिसंबर ऑफ 7th सेमेस्टर में होगे, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगी। मेरे को अपनी पहली ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी ग्रोफर्स की वहाँ मिल गई थी। इंटरव्यू बिट पे तो मुझे खुद से कॉल आ गया था, इंटरव्यू बिट पे मेरी प्लेसमेंट जुलाई में हो गई थी, बट पहली प्रॉपर ऑफ कैंपस जो मैंने हासिल करके निकाली वो ग्रोफर्स की निकाली थी दिसंबर में। तो दिसंबर के अराउंड तुम्हारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि तब तक ऑन कैंपस वाला सारा खेल खत्म हो चुका होता है। दिसंबर ऑफ 7 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर पूरा ऑफ कैंपस भर भर के आती है। इवन ड्यूरिंग दिस कोविड 2021 में इतनी अपॉर्चुनिटीज आई है ना, इतनी ज्यादा। मेरे कॉलेज के कुछ बच्चों के पास 8 ऑफर है ऑफ कैंपस। मैं टीयर 3 कॉलेज टाइप से हूँ, टीयर 2 टीयर 3 जो तुम्हें बोलना बोलो, 8 ऑफर है एक बच्चे के पास। तो बहुत ज्यादा आती है। 8 बस तुम्हें क्या है, रेडली लिंक्डइन पे स्क्रॉल करते रहना है। अच्छा तुम्हें पता लगा, अच्छा मेरे दोस्त के किसी दोस्त का इस कंपनी में हुआ है, मतलब वो पक्का अभी भी हायर कर रही होगी, तो क्यों ना उसके बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज करूं और रेफरल मांगू। तो तुम्हें रेफरल मांगना, यू नीड टू आस्क फॉर रेफरल्स कि प्लीज ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने 4 साल इतनी मेहनत करी है, ये मेरा रेज्यूमे मैंने बनाया है, आप इसको रिव्यू करिए और प्लीज मुझे रेफर कर दीजिए। अगर वो आपको रेफर कर देते हैं तो देयर इज विल बी अ हाईली लाइकली चांस दैट यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग अवेयर अराउंड द 8th सेमेस्टर, जहां पे आपको चीजें मिलेंगी। डीटीयू एनएसआईटी वाले बच्चे या जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा दोस्ती बना के रखो, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी खुद की कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है। वो लोग, उनकी प्लेसमेंट 7 सेमेस्टर में लग चुकी होती है, फिर वो 8 सेमेस्टर में ऑफ कैंपस के लिए निकलते हैं। तो तुम उनसे बना के रखो, अच्छा तेरे को पता है, अच्छा पैलेंटिर में ओपनिंग आई है, अच्छा गूगल में ओपनिंग आई है, अमेजोन में आई है, मैं भी कर देता हूँ। बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना उसी दिन कम से कम 10 15 20 लोगों को रेफरल के लिए मैसेज करना है, 2-3 लोग को पक्का कर देंगे रेफर। हाउ टू गेट रेफरल इज, आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाइए, लिंक्डइन पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर उनको अपना रिज्यूमे भेजिए। अगर उनको आपका रिज्यूमे इफेक्टिव लगता है देन दे विल बी रेडी टू रेफर, क्योंकि आपने उनके साथ काम तो करा नहीं है, तो कोई क्राइटेरिया चाहिए ना, ऐसे सबको थोड़ी रेफर कर देंगे, उनके रेफरल की वैल्यू गिर जाएगी। सो यू नीड टू हैव अ गुड रिज्यूमे, यू विल गेट रिजेक्शंस देयर आल्सो। लोग तुम्हें रेफरल करने से मना कर देंगे, यार आपकी प्रोफाइल नहीं लग रही है, मैं जिस बेसिस पे देखता हूँ प्रोफाइल को उस बेसिस पे मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बट अगेन यू हैव टू ट्राई हार्डर एंड हार्डर। सी शार्प डीएसए की बुक मुझे नहीं पता है, सी शार्प पे मैंने बहुत पहले थोड़ा बहुत हल्का सा काम किया था, बट मेरे को नहीं पसंद है तो मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करी। Bro, can you do projects in app, web dev, etc. instead of CP to learn DSA and develop? So I'm Shri, I believe DSA पढ़ने के लिए तो वैसे भी CP करने की जरूरत नहीं है, DSA तो आप करो, CP तो प्रैक्टिस है। मैंने कहा ना CP मैंडेटरी नहीं है, आपका इंटरेस्ट है CP में तो करो, वरना आप DSA एटलीस्ट अच्छे से करो। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि ग्राफ पे BFS कैसे चलाते हैं या फिर मैट्रिक्स BFS DFS कैसे चलाते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं है। मैट्रिक्स पे BFS DFS करना इज नॉट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, दैट इज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अगर आपको वो नहीं आता, यू आर नॉट रेडी। ओके, Yeah, we have Radhika who wants to ask a question. She's a presenter already. Please unmute and speak. यस भैया, सबसे पहली चीज है कि लाइक इज द लैंग्वेज इम्पोर्टेंट व्हाइल डूइंग डीएसए, लाइक जावा से करनी है कि पाइथन से करनी है, ऐसा कुछ भी है क्या? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया भी, देखो अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट नहीं करा है तो आप C++ से कर लो। C++ में तो कोई बैरियर आएगा ही नहीं। C++ के बाद सेकंड रिकमेंडेशन रहेगी जावा, पर आपको जावा में ऑप्टिमाइजेशंस करना आना चाहिए। तो ऐसा होता है, अगर कोई सॉल्यूशन C++ का 1 सेकंड में सबमिट हो जाता है, जावा में वही सॉल्यूशन 2 सेकंड दिए जाते हैं उसी सॉल्यूशन को, पाइथन को 5 सेकंड दिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पाइथन की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लोगों को नहीं पता होती हैं। मैं भी पाइथन स्कूल से जानता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। बट C++ की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जावा की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो टॉप 2 रिकमेंडेशन रहेगी कि आप C++ से जावा से करें। अगर कर सकते हो तो C++ से करो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो C++ में हैं, कुछ कुछ है जो जावा में अवेलेबल C++ वाले फीचर्स नहीं है। बट अगेन जावा से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ जावा में कोड करते हैं,
मेरे साथ इंटरव्यू में एजुकेटर्स थे, IIT बॉम्बे वगैरह से आए थे, वो प्रॉपर जावा में ही कोड करते थे। तो जावा से भी आप कर सकते हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन C++। इट्स लाइक कि आपको कोई खाना पसंद हो सकता है, उसमें अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होंगी। मुझे भी कोई खाना पसंद है, उसमें भी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। मैं उस न्यूट्रिशन वैल्यू का कुछ क्लेम दे रहा हूँ आपको कि इसकी ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसलिए अच्छी है। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट डू यू वांट टू टेस्ट इट, दैट्स इट। सो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बैरियर नहीं देगी, बट C++ या जावा पे स्टिक रहो। अब एकदम तुम जावा स्क्रिप्ट में कोड करोगे तो वो TL ही देगा, क्योंकि वो बहुत स्लो होती है। रूबी में कोड करोगे वो स्लो होती है, बट जावा C++ पाइथन में काम चल जाएगा। प्रेफरेबली जावा C++, अल्टीमेट प्रेफरेंस C++। ये मेरी तरफ से रेकमेंडेशन है। अभी मैंने बोला जावा स्क्रिप्ट में DSL को मत करना प्लीज। Rishabh, I have one more question. I'd like to Okay, go then. for it. Yeah, sure. Yeah, भैया अभी जैसे वो स्टार्टअप वाली इंटर्नशिप्स के बारे में we had a talk. So is it necessary to go for a number of internships या अगर एक करे बेस्ट करे वही enough है कि ज्यादा इंटर्नशिप्स होने चाहिए? It's enough. मैं ज्यादा इंटर्नशिप इसलिए करता था, मेरे पास टाइम बहुत खाली था। मेरे कॉलेज में अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं था। 20% अटेंडेंस में 10% अटेंडेंस में काम चल जाता था। कॉलेज में ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था। मैं कॉलेज का पढ़ाई वढ़ाई पहले करके रखता था, मेरी CGPA सही मेंटेन थी, और कॉलेज में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था तो मैं इंटर्नशिप कर लेता था। बट एक भी करते हो तो भी काम चल जाएगा। नंबर्स डोंट मैटर, क्वालिटी मैटर। Okay, thank you. Where will web dev help in getting jobs in good companies along with DSA? I would say yes. अगर आपको वेब की नॉलेज है, it will be helpful. But again, DSA is definitely important. गुड इवनिंग भैया, मेरा एक क्वेश्चन, मेरे पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चंस थे। लाइक कि हम बेसिकली मतलब जिन्होंने कभी कोडिंग किया नहीं है या फिर कुछ टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से मतलब स्टार्ट नहीं कर पाए, तो मतलब बेसिक हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे मतलब प्रोग्रेस करें। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब जॉब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तब CGPA और क्लास 12 के मार्क्स मैटर करेंगे इतना? क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, क्लास 10th के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। पास हो ना, उतना मैटर करेगा। पास CGPA से की ज्यादा बात, हाँ पास है ना, तो मतलब बीटेक में हो तो पास हो, या BCA BSc में पास हो, पास मैटर करेगा। बात रही CGPA की, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी कंपनी CGPA के बेसिस पे रिजेक्ट कर देती है। अगर आपकी 7 या 8 है CGPA, यू आर वे गुड। 6 उतना अच्छा नहीं है, पर ऑफ कैंपस में 6 है, 5 है, 4 है, स्किल के बेसिस पे मिलेगा। ऑफ कैंपस में कोई CGPA नहीं देखता। मैंने अपने रिज्यूमे में बहुत बड़े टाइम तक CGPA मेंशन ही नहीं करा था। फिर जब मेरी 8वें सेमेस्टर तक CGPA अच्छी बन गई तो मैंने मेंशन करा, अच्छा अब मेरी बढ़िया CGPA है तो मैं मेंशन करूंगा। तो नोबडी सीज योर CGPA ऑन कैंपस में। जैसे DTU में क्या होता है, कंपनी RCGM, आई एम नॉट श्योर, आपको पता ही नहीं पता। RCGM क्या करती है, 9 CGPA 8.5 से नीचे वालों को टेस्ट ही नहीं देने देती, 8.5 से ऊपर टेस्ट देने देती है। अब 8.5 से ऊपर अच्छे प्रोग्रामर बचते ही कम है, क्योंकि वो वैसी कॉलेज स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बढ़िया, थोड़ा बहुत भी बढ़िया प्रोग्रामर होता है उसका हो जाता है। तो ऑन कैंपस में अगर आपके कॉलेज में आती है कंपनीज, तो थोड़ा CGPA का ध्यान में रखो। मेरे को पहले से पता था नहीं आती, फिर भी मैंने 8.7 टाइप मेंटेन कर ली। तो CGPA मेंटेन करना बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो बाकी तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि बाकी लोग कितना पढ़ के आए हैं। ये तो इतना तो मैं बीटेक करके समझ गया हूँ कि आपकी CGPA इस पर भी डिपेंड करेगी कि बाकी कितना पढ़ के आए। तो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और भैया मतलब कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे मैं अभी किसी ने स्टार्ट ही ना किया हो कभी तो। अगर आपने बिल्कुल ही स्टार्ट ही नहीं करी है, आई वुड से कि आप यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखो। अब देखो, मेरे को एकदम ऐसे रेडिली दिमाग में नहीं आ रहा है, बट अभी किसी ने चैट में लिखा था CS50 के बारे में। तो कुछ कोर्सेज है CS50, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह के, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग करना बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है। उस लैंग्वेज में फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स लगाना, फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें पढ़नी है। आप कहीं से पढ़ सकते हो, आप छोटी सी कोई किताब खरीद लो, पढ़ लो। और फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोर्सेज पे लॉगिन करो, कोर्सेज पे लॉगिन करो, उनके प्रैक्टिस सेक्शन के क्वेश्चन बनाओ, बेसिक बिल्कुल बिगिनर, ऐसे A+B=C वाले क्वेश्चन। और फिर धीरे धीरे आपको खुद से डेवलपमेंट होगी आपकी। आप कम्युनिटीज वगैरह देखोगे, डिस्कस फोरम देखोगे, वहाँ पे किसी ने कुछ वीडियो लेक्चर अच्छे डाले होंगे, तो आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्राइवर का चैनल है, आप स्ट्राइवर के चैनल को देख सकते हो। आप अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो और स्ट्राइवर के चैनल पे देख सकते हो।
अनअकैडमी पे हम लोगों ने मैंने जैसे बताया 500 आवर्स का कंटेंट फ्री डाला हुआ है, वहाँ देख सकते हो फ्री कंटेंट। तो फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। पेड कोर्सेज आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे देंगे, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि कौन सा पेड कोर्स अच्छा है, एटलीस्ट इस सेशन। तो अगेन एटलीस्ट स्टार्ट विद अ लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप बुक से पढ़ लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे बस यूट्यूब करो कि हाउ टू लर्न C++ इन 1 आवर, तो ऑल लेक्चर मिलेंगे जो तुम्हें 1 घंटे में C++ सिखाने का दावा करेंगे। चुपचाप देख लो। शुरू में इन डेप्थ जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, शुरू में किक स्टार्ट लेने की जरूरत है। ठीक है, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले दिन बैक करना नहीं सीखते ना, पहले स्टीयरिंग संभालते हैं कि दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, फिर एक हाथ स्टीयरिंग पे, फिर एक्सेलरेटर देना सीखते हैं, फिर क्लच, फिर ब्रेक, फिर गियर, ये सब करते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले दिन ही रिवर्स मारोगे तो किसी को मार दोगे। तो तुम्हें पहले लैंग्वेज सीखनी, लैंग्वेज कहीं से भी बेसिक सीखना, बाद में लैंग्वेज के इंडेप्थ में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, CS50 वगैरह देख सकते हो आप लोग, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। फ्री कोड कैंप एक बहुत ही अच्छा चैनल है, सब फ्री अवेलेबल है वहाँ। फ्री कोड कैंप यूट्यूब पे चैनल है, वहां से पढ़ सकते हो आप, वहां पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। तो दिस विल बी माय रिकमेंडेशन। We have Arzit now wants to ask a question. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब एज अ फ्रेशर हमें कौन से प्रोजेक्ट पे मतलब काम करना है? ठीक है, तो पहले तो भाई ने खुश कर दिया कि भाई बोला, भैया नहीं बोला। तो इंस्टा में मैसेज कर देखो, मैं अपनी प्रोफाइल में ऐड करूंगा भाई पहले। सेकंड थिंग, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑल्दो मैंने प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग भी एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे बनाई थी, बट मैं तुम लोगों को भी कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आप हैकाथॉन्स में बनाओगे। ठीक है, जैसे हैकाथॉन होते हैं, तो आप खुद से अगर प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे तो आपको लगेगा मैं क्या बनाऊँ, क्यों बनाऊँ, बनाते बनाते मोटिवेशन नहीं आएगी। बट हैकाथॉन्स में क्या होगा, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपके पास एक टीम होगी, आपकी टीम मिलके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएगी जिसका रेलेवेंस होगा, जिसका हैकाथॉन में रेलेवेंस होगा। आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हैं। बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, कॉलेज के फेस्ट में हैकाथॉन होते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है, क्रिप्टो के बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, ब्लॉकचेन्स वगैरह के। आप वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे बेस्ट पार्ट क्या होगा, आप एक सेमेस्टर में अगर 2 हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट करते हो और एक हैकाथॉन में आपके 10 दिन भी लगते हैं, तो 20 दिन के अंदर आपके पास 2 प्रोजेक्ट है। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, आप कुछ अच्छे क्लोन्स बना सकते हो, जैसे बुक माई शो का क्लोन या नेटफ्लिक्स का क्लोन, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, तो आपको सोचने समझ में आएगा। अच्छा, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, बुकिंग कैसे करते हैं, वीडियोस रेंडर कैसे करते हैं, लॉग इन लॉग आउट कैसे बनाते हैं, ऐसे। इसके अलावा आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन जैसे कोडशेफ या कोड फोर्सेस जैसा कुछ बना सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन आईडी आप बना रहे हो। मैंने अपने टाइम पे एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे मैंने, आप लोगों को पता होगा, 2 प्लेसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आपने निकाला होगा, हम लोगों ने 2 स्पॉट्स के बीच में सेफेस्ट पाथ निकाला था। पर अब मैं घर पे बैठा रहता ना, तो मेरे को शायद दिमाग में नहीं आता, पर क्योंकि मैं हैकाथॉन में गया, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रोड से रिलेटेड थी, तो वहाँ पे हमने 4-5 लोगों ने फिगर आउट करके बहुत ही बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया। दीज विल बी माय रिकमेंडेशन, वरना आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डेडिकेटेडली समझाया कि कैसे आपको प्रोजेक्ट्स के साथ टाइम मैनेज करना चाहिए और कैसे हैकाथॉन पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से भी आप अच्छे प्रोजेक्ट कर पाओगे, कि अगर आपने ओपन सोर्स किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करा है तो दैट विल बी आल्सो अवेलेबल। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि मतलब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट जैसे गिटहब पे जाते हैं तो समझ नहीं लगती कि उसकी मतलब क्या करें, एग्जैक्ट क्या करना है, तो उसके लिए कोई आप टिप्स एक मतलब प्रोजेक्ट को पकड़ो, जैसे मैंने बताया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट को पकड़ो और लोगों से बात करो। लोगों से, अपनी क्रश से बात करने के लिए क्रश की दोस्त से बात करिए, समझ रहे हो ना? तो तुम उन लोगों से बात करो जो उस प्रोजेक्ट को जानते हैं। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त है जो उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, या फिर कोई यूएस में बैठे बंदे, उसको मेल मारो, यार थोड़ा सा गाइड कर दो। 10 लोगों को मेल मारो, 10 में से कोई एक रिप्लाई करेगा। आपका क्या जा रहा है, वो टाटा स्काई का आता था ना, पूछने का क्या जाता है। आस्क पीपल दैट हाउ टू गेट स्टार्टेड। इफ यू वोंट आस्क, यू विल बी अलोन इन एन ओशन, यू नीड अ कंपेनियन। ये आस्क। थैंक यू भाई। Hello. Okay, yeah. Bhaiya, I want to ask that how can I get an internship or a job opportunity if I'm not from a competitive programming background? Like, can you suggest some ways?
I can give you an example. So there is a very dear friend of mine, Swati Singh. मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे को कुछ नहीं कहेगी. So she was in my college. She got an internship at Microsoft. I don't think she has an ID at CodeChef or Codeforces, and she later converted it into a PPO. She got some recruiter calls from Google and all as well, but she was not able to make it. But she's in Microsoft now. So there is no criteria कि अगर आपने competitive programming करी है तभी जॉब लगेगी. Competitive programming करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी. तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको जो क्वेश्चन करा होगा आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी करा होगा, जो क्वेश्चन मिलेगा वो कहीं ना कहीं करा होगा. बट देयर इज नो सर्टेन क्राइटेरिया कि आपने सीपी नहीं करी है तो आपको नहीं मिलेगा. जो थोड़े से लोअर एंड कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके लिए सीपी हेल्पफुल होता है कि वो रेज्यूमे में थोड़ा शो करती है कि यार इसने बहुत ज्यादा सीपी करी है तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट अच्छा है. पर आपने नहीं करा है तो कोई किसी भी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होता आई वांट अ 6 स्टार एट कोडशेफ. नो. आपका एल्गोरिथमिक पैराडाइम पे ग्रिप अच्छा होना चाहिए. डीएसए तो आपको करनी ही करनी है. जो बेसिक लीड कोड लेवल डीएसए है, जो कॉलेज लेवल डीएसए है, वो आपको करनी ही करनी है. आपको डीपी आनी चाहिए. पर क्या आपको डिजिट डीपी आनी चाहिए? नहीं. आपको 2D डीपी आनी चाहिए? हाँ. आपको नैपसैक लगाना आना चाहिए. नैपसैक के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम करनी आनी चाहिए? हाँ. पर आपको क्या डिजिट डीपी आनी चाहिए, एसओएस डीपी आनी चाहिए? नहीं, वो रिक्वायर्ड नहीं है. क्योंकि वो शायद इंटरव्यूअर को, अमेज़न के इंटरव्यूअर को भी नहीं आती होगी. समझ गए आप बात? सो प्लीज सीपी कोई क्राइटेरिया नहीं है. जो आपको बोले ना सीपी से जॉब लगती है, ब्लॉक कर दो. जिस दिन मैं बोलूं कि सीपी से जॉब लगती है उस दिन मुझे ब्लॉक कर देना अपने सोशल प्लेटफॉर्म से. ट्विटर पे ट्वीट डाल देना. कोई सीपी से जॉब नहीं लगती. इट्स ऑल अबाउट कि सीपी से तुम्हें थोड़ा टफ क्वेश्चंस हैंडल करने को मिलते हैं. एक बार तुमने थोड़े टफ क्वेश्चंस हैंडल कर लिए होते हैं तो जो जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं. और इवन इफ रिलेटिवली हार्ड भी होते हैं तो तुम ऑलरेडी उतना प्रैक्टिस करके आए हो. इट्स लाइक कि तुम्हें जॉब बोर्ड का एग्जाम लिखना है, तुम बोर्ड में फिटजी का मॉड्यूल सॉल्व करके आए हो, तो तुम यहाँ का करके आए हो, तुम्हें यहीं तक का करना था. ये गैप तुमने खुद कवर किया है, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी रहेगा ये. समझ रहे हो? जब बोर्ड में मैथ्स का पेपर टफ आता है ना तो फिटजी वाले हंसते हैं कि अरे ये तो पढ़ा हुआ था. वो वाली चीज मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ. नॉट श्योर कि सच में हंसते नहीं हंसते. मैं फिटजी नहीं किया था, तो नो फिटजी प्रमोशन. आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. प्लीज सेंड योर जीसॉक पीडीएफ. आप वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिए. अगर आप लोगों को जीसॉक का वो मेरे प्रपोजल का पीडीएफ और रेज्यूमे आप लोगों को मिल जाएगा, प्लीज वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिए. या सॉरी टू कट यू, प्लीज कंटिन्यू. हेलो भैया, मैं राहुल बोल रहा हूँ. तो ये ना ये कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग किस लिए पढ़ते हैं और इससे आगे क्या यूज है हमको वेब डेवलपमेंट में? कि हम भी पढ़ते थे, कुछ यूज किस लिए था हमको वो पता नहीं. आपने 12th सॉरी, 12th कौन सा बोर्ड? मैंने साइंस ही किया है. अरे बोर्ड साइंस कौन सा बोर्ड होता है भाई? अच्छा सॉरी, महाराष्ट्र बोर्ड. महाराष्ट्र बोर्ड से करी थी. डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था क्या आपको? हाँ पढ़ाया था. उसका क्या यूज होता है? मैंने छोड़ा था. मैंने स्किप किया प्रोबेबिलिटी या डिफरेंशियल. मैंने अच्छा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्किप कर दी थी. अच्छा. हाँ. 3D वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया था क्या? उसका क्या यूज होता है? किसका? 3D वेक्टर अलजेब्रा. अभी याद नहीं है, आप पूछ रहे हो. हर चीज एक स्पेसिफिक डोमेन में यूज होगी. 3D वेक्टर अलजेब्रा आपकी यूज होती है जब आप गेम डेवलपमेंट वगैरह की फील्ड में जाते हो. डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह यूज होगी अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाओगे जो थर्मोडायनामिक्स और इस मतलब मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर काम करती होगी, तो वहां पे आप मैटलैब पे जब कोडिंग करोगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत यूज होगा. सिमिलरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज होती है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइक कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट आता है, आपको बबल सॉर्ट आता है, आपको सॉर्ट करना आता है, पर आपको एक गिवन एक सिचुएशन है कि आप उस पर वो चीज अप्लाई कर सकते हो. जब आप सच का कोड लिखोगे, प्रॉब्लम्स लिखो, आप खुद सोचो जोमैटो या गूगल मैप्स है, तो गूगल मैप्स में बहुत सारे एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व हैं, तभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखा पाता है. वो एल्गोरिथम लिखने के लिए आपके कोर एल्गोरिथमिक पैराडाइम पे पकड़ होनी चाहिए. तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो. मैथ्स में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जिसका कोई घंटा कोई यूज नहीं है. ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पढ़ाया था मेरे को, मुझे याद है किसी टीचर ने. मेरे को जिंदगी में ट्रेपीजियम शेप ही नहीं दिखती किसी चीज की. मेरे को पता ही नहीं ट्रेपीजियम कौन सा धातु है जो ट्रेपीजियम होता है, पर मुझे पढ़ाया गया क्योंकि इट वाज टू शार्पन योर ब्रेन. वो एप्टीट्यूड की किताबें आती हैं जो कहती हैं ये 3 फिगर्स देखो और बताओ चौथी क्या होगी, उसका लाइफ में क्या यूज होगा. देयर आर समथिंग टू ट्रेन योर ब्रेन. एक्सरसाइज करते हैं, डोले इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, तो सब लोग जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी को मारना है? नहीं. तो फिर क्या काम है, क्यों करना है इतने, फुलाने हैं इतने, खाली भाग लो, उससे भी तो सेहत बनती है. हर चीज उसके लिए नहीं कर जाती ना.
It's for your endurance, it's for your strength, so it's for your strength of your brain. आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए. जो IAS होता है उसको इतना सब कुछ पूछा जाता है, आपको क्या लगता है वो जाके पढ़ाता थोड़ी है, उसको तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई यहाँ पे पुल गिर गया है, अब क्या करा जाए. पर उसको पेपर में क्या पूछा जाता है कि कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी. वो जिंदा थोड़ी होने वाले हैं मुगल जिनकी लड़ाई वो याद करता है. So it's all about कि how much strength your brain has to fight to a complex situation that you can get in a job. And sometimes even in software development, the algorithms that you learn in practice are used as it is. आप हैश मैप्स वगैरह ये सब जो पढ़ते हो, हैश मैप्स वगैरह सब यूज होता है कोडिंग में. आपको जो हैश मैप क्यों पढ़ना है, एरो से काम चल जाता है क्योंकि वो एफिशिएंट है. और आपको पता होना चाहिए कि कैसी सिचुएशन में आपको हैश मैप लगाना है, कैसी सिचुएशन में आपको सेट लगाना है. बहुत छोटी छोटी चीजें आपका सॉफ्टवेयर डाउन कर सकती हैं. सो दैट्स व्हाई. वन मोर थिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप लोग डेटाबेसेस को तो यूज करते हो ना. अगर कभी थोड़ी बहुत कोडिंग करी हो, जितने भी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग डेटाबेस यूज करते हो. डेटाबेसेस कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का. आपको पता है इंडेक्सिंग अंदर कैसे करी जाती है? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी कंपनी डेटाबेसेस बनाती है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाती है, और मुझे इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट करनी है, कैसे करोगे? MySQL में तो पता है, वहां पे इंडेक्स करके बस कमांड होती है, लिख देते हैं बच्चे. पर आप खुद का, मैं ओरेकल हूं, आप ओरेकल में हायर हुए हो, आपको ओरेकल के लिए एक नया ओरेकल SQL लिखना है. अब इंडेक्सिंग लिखो, कैसे लिखोगे? तो वहां पे ट्रीज यूज होती है, पीछे B+ ट्रीज यूज होती है. अब आपको पता ही नहीं B+ ट्रीज यूज होती है, तो क्या लिखोगे आप ओरेकल में? हर कोई API नहीं लिखता, बस ये याद रखो, ठीक है? As I have asked, Thank you. C++ can yes, Samarth, you can definitely do that. Where we have Vibhu. Yeah, please ask. Vibhu. I think this question was answered. Am I audible? Yes, Vibhu. Yes, now you're audible. Yeah, भैया एक Your voice is not audible. Vibhu, voice lag हो रही है आपकी. Okay, is it now audible? Yes. Yeah, now you're audible. ओके भैया, जैसे जनरली सेकेंड ईयर में होते हैं बच्चे, तो कई बार होता है कि उनके जो पीयर्स हैं, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है बहुत अच्छे से, कोई AI में कुछ नया सीख रहा है, तो एक कैसे पीयर प्रेशर जनरेट होने लगता है, फोमो होने लगता है कई बच्चों को कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा ये छूट रहा है. तो उस चक्कर में जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे DSA है, तो ऐसे क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं कि जिनको करना ही करना है, इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें देखनी है? मेरे हिसाब से आपको DSA तो करना ही करना है. जो बच्चा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं कर रहा और भर भर के एंड्रॉइड कर रहा है, वो एक्सेप्शन बन सकता है, वो जनरलिटी नहीं बन सकता, वो जनरल केस नहीं बनेगा, वो शायद एक्सेप्शन बन जाएगा. एंड वी कांट लिव लाइफ ऑन एक्सेप्शंस. फर्स्ट थिंग, सो DSA तो करना ही करना है. एंड आई बिलीव थोड़ी बहुत वेब की नॉलेज 4 साल में कभी भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, आप ले लो. वेब की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है. वेब की नॉलेज नहीं होती तो थोड़ी दिक्कत होती है. भैया, सॉरी टू इंटरप्ट. लाइक अभी तक भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बट गाइस टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें क्वेश्चंस अभी रिड्यूस करने पड़ेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं लेना चाहूंगा. एक लास्ट क्वेश्चन. किसी बच्चे ने पूछा था, इज कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट? आई बिलीव यस, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. व्हाई? नॉट बिकॉज पीपल वांट टू सी योर सेक्सी इंग्लिश, बिकॉज पीपल वांट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग. You should know communication or English or whatever language you are proficient in at till that much extent such that people are able to understand. मेरे से भी तुम इंग्लिश का पेपर लिखवाओगे, 100 में से 60 अगर स्कोर कर दूं ना मैं, अगर 60 रिटर्न पेपर में, तो मेरे ये जिस लैपटॉप से मैं ये सेशन ले रहा हूँ, लैपटॉप उस बच्चे का जो पेपर सेट करे, मैं 60 भी नहीं स्कोर कर सकता हूँ. आई नो इंग्लिश और आई नो माई कम्युनिकेशंस एट दैट लेवल ऑफ एक्सटेंट जहाँ पे मैं लोगों को समझा पाऊँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ. Communication is only a way to communicate your thoughts. आप इंटरव्यू में बता ही नहीं पाओगे कि सर मैं रिकर्जन ऐसे लगा रहा हूँ, तो इतना रिकर्जन पढ़ने का फायदा नहीं होगा. तो थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दो. एंड इट लुक्स एलिगेंट, इट लुक्स प्रोफेशनल if someone is talking in a certain proper way. Obviously there are scarcity of resource at a lot of places here in India where people are not able to get good education, and that's why they lack in communication. But again, every time there will be choices, every time there will be something that will be pulling you back. You have to put your best, you have to put that force
so that you come out of that stage. आप कॉलेज में आ चुके हैं, आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज, आप अपने फ्रेंड से बोलिए थोड़ा बहुत यार मेरे साथ कम्युनिकेशन के टिप्स शेयर कर, मेरे साथ ऐसे बात किया कर, इंग्लिश मूवीज देखो, उससे आपको सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते, मैं आज भी सबटाइटल के साथ इंग्लिश मूवी देखता हूँ, बिना सबटाइटल के तो मतलब मनी हाइस्ट तो मेरे ऊपर से जाता है, ठीक है, बट सबटाइटल के साथ मेरे को समझ में आ गया। इतनी कम्युनिकेशन अगर आपको आती है तो फुल मचाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मे बी वी कैन रैप इट अप। किसी के और कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज आई संकेत सिंह, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई टू 70 to 80%। लिंक्डइन पे भी आप पिंग कर सकते हैं, बट लिंक्डइन पे ऑलरेडी बहुत पेंडिंग है, मैं रोज 30 निपटा रहा हूँ, तब भी अभी मेरे पास 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा पेंडिंग क्वेश्चंस है, तो लिंक्डइन पे थोड़ा सा भी फ्लडेड है, तो आप इन 2 प्लेटफॉर्म से यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके Okay, Bhaiya. So now Pratash will be concluding the event. Thank you very much, Bhaiya, for being with us today. Thank you very much, Bhaiya. This was surely very informative and a very fun session. I hope everyone was able to make the most of it. And I'll also like to thank all the participants who were with us and all the people who asked their questions. And at the very last, I'd like to thank all the teammates, my two teammates who helped in organizing this event such wonderfully. So this was the whole event. I guess everyone has filled the feedback form which was provided in the chat box. I'm providing it for one more time. Also, guys, this event was organized by Knowledge Catalyst community. So you all can just connect with us on our Telegram handles, Discord channels, and also on LinkedIn. Also, guys, go and subscribe Bhaiya's channel as well. Also, Knowledge Catalyst channel on YouTube. And guys, thank you all for being with us. I hope you all enjoyed it. Thank you, Bhaiya, for sharing your experiences and knowledge with us. We all enjoyed it and learned a lot today. Yeah, thank you guys, thanks for inviting me, and everyone please stay motivated, please do coding, please find a crush and spend some time there also, please don't study always and keep coding. Thank you everyone, good night.